Hi everyone, in Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 9.3 part 3. So let's begin. See, in this lecture we'll be obviously covering the topics that is left for the 9.3, but along with these topic we'll try and do many of the interlinkages because अभी तक आपने जितने भी 9.3 या 9.1 के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं कहीं ना कहीं you will see their correlation in this part. Then of course मेन टॉपिक को तो हम डिटेल में कवर करेंगे ही along with the value additions as usual. बट हम कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे जैसे हमने पार्ट 2 में भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे. नीड नॉट टू बी नेसेसरी कि आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन पर्पज से, बट या एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट कुड बी द एप्लीकेशंस ऑफ दीज, राइट. देन विल सी सम केस स्टडीज दैट यू कैन ऑफ कोर्स यूज व्हाइल राइटिंग द आंसर्स. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं. So to begin with, first of all, let's try and understand the significance of sexual selection. Because आप consanguineous, non-consanguineous mating और इनके इफेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो इससे पहले समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि why these kind of things like basically ये sexual selections, इनको जानना समझना क्यों important है. सो यू मे सी दिस स्टोरी बोर्ड. इसके अंदर हम सभी को पता है देयर इज अ पी हैन, देयर इज अ पीकॉक, राइट. पी हैन बेसिकली आप फीमेल पीकॉक को भी कहते हैं और जनरली आप पीकॉक भी बोलेंगे, दैट इज वेल एंड गुड. बट यह मुद्दा वो नहीं है. हियर द पर्पस इज यू मस्ट बी नोइंग दैट द पीकॉक्स आर हैविंग सम वेरी good feathers with bright colors, right? But the peahens don't have these. और ये जो feathers है, these are both advantageous and non-advantageous to the peacocks. How? बिकॉज ये काफ़ी बल्कि होते हैं एंड एज यू मे सी जो प्रेडिटर्स होते हैं, प्रेडिटर्स से छुपने में ये जो पीहेंस है दे आर लाइक मोर सक्सेसफुल बिकॉज दे कैन ईजिली गेट हिडन इन द वुड्स. बट इन केस ऑफ द पीकॉक्स दे आर नॉट able to hide because of their bulky feathers, because of their vibrant colors, right? वो कहीं भी छुपेंगे they will be easily the predator will be easily able to catch them. So what will happen? Of course ये predator इनको खा जाएंगे. एंड अगर वो इसी तरीके से इनका शिकार चलता रहता है तो व्हाट विल हैपन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम? देयर पॉपुलेशन विल अल्टीमेटली कम डाउन. बट दैट डजंट हैपन, राइट? बिकॉज वी जनरली टेंड टू सी द पीकॉक्स विद द वाइब्रेंट फेदर्स. यानी कि कहीं ना कहीं आपको इस टाइप के पीकॉक्स अभी भी देखने को मिलते हैं इवन दे आर हंटेड वेरी वेल. So what could be the possible reason for this? Because as I told you, they have both the advantage and the disadvantage. तो disadvantage तो हमें पता चल गया. Advantage ये होता है इनका that the peahens they prefer the peacocks for having more bright feathers to mate. So of course if they will mate with like multiple partners they will definitely be able to produce more offsprings और इसी से उनका जो परिवार है that will keep on growing, right? So that is how you can see it. So here आपका जो सेक्शुअल सिलेक्शन का टॉपिक है this is not a very new concept. This has been a part of the evolutionary forces that we have already seen in the natural selection. So natural selection का ही आप कह सकते हैं sexual selection is a sub part of it, right? It's not something in isolation or something in new that we are studying right now. So in case suppose अगर आपको examination में Darwin natural selection के बारे में लिखना होता है and if you wanted to present a kind of an introductory part for your writing related to consanguineous mating और ये सारी चीज़ें, then you can definitely utilize these kinds of a thing to begin your answer, right? So इसके अंदर हमने क्या जानना है थोड़ा बहुत. सबसे पहले तो ये कि आपका जो सेक्शुअल सिलेक्शन है ये एवोल्यूशनरी फोर्सेस में से लाइक वन ऑफ द पावरफुल एवोल्यूशनरी फोर्सेस है और ये एक पार्ट है आपके नेचुरल सिलेक्शन का. दैट्स वेल एंड गुड. और जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी है दैट हाउ दिस सेक्शुअल सिलेक्शन अकर्स और व्हाट आर द थिंग्स that can basically be advantageous for this. They are the coloration, increased size, striking ornaments. ये बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है. Even in real life example, you might find like some people are having a preference for certain kinds of partners, right? So that is because they are having certain choices for the sexual selection ultimately. तो वो कोई भी चीज़ें हो सकती है. So दैट इज़ द पर्सनल चॉइस ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इफ यू टॉक अबाउट. लेकिन हाँ आपको एनिमल्स के केस में ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती है और एनिमल्स के केस में ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स भी होते हैं, मीटिंग रिचुअल्स भी होते हैं फॉर विच द मेल पार्ट ट्राई एंड गेट द अटेंशन ऑफ द फीमेल वन, राइट. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द सेक्शुअल सिलेक्शन दैट यू मे राइट. और ये कंसेप्ट किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन इन द डिसेंट ऑफ मैन इन 1871. अगेन आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू कि आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि याद होनी चाहिए या बुक्स का नाम मेंशन होना चाहिए. वी आर जस्ट नोइंग इट जस्ट टू एस्टैब्लिश अ सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर.
ठीक है। सो अब जितने भी डार्विन की स्टडीज थी अपॉन दीज पर्टिकुलर ट्रेट्स लाइक अबाउट द सेक्सुअल सिलेक्शन एंड ऑल, इसमें डार्विन हैज emphasized that either the genetic relationship between male and female mating element usually among plant or the number of male and female may obtain usually amongst animal, and combining these schemes yield a quantitative methodology that emphasize measurement of sex differences in the variance in relative fitness. यानी कि knowingly अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो ऑन द पार्ट ऑफ द मेटिंग, देन यू कैन रियलाइज कि आगे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो किस ट्रेट्स के हो सकते हैं, रिलेटिव फिटनेस क्या हो सकती है, लाइक वेदर दे आर गोइंग टू हैव एनी डिसऑर्डर और नॉट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन राइट कि आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, और उसके अंदर भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिपेंडिंग अपॉन पेरेंट और आपके अलग अलग काउंटर पार्ट पेरेंट्स जो है उनके क्या ट्रेट्स है, वो अल्टीमेटली आपके ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, एंड समटाइम्स इट मे लीड टू सर्टन डिजीजेज ऑल्सो, ठीक है। सो अगेन आप उन सब चीज़ों को पता करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। And such information predict the degree and the direction of sexual dimorphism within these species. And what is the sexual dimorphism? हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, like human beings, they are a very good example of sexual dimorphism, in which you will definitely be able to segregate both the male and female. राइट, मेल के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीमेल के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिल्कुल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपको कोई ऐसा नहीं हो कि लाइक ओके दे आर काइंड ऑफ 90% सिमिलर। ऑफकोर्स जो एक जेनेटिक मेकअप है वो तो सिमिलर है, बट इन टर्म्स ऑफ फेनोटाइपिक वेरिएशंस अगर आप बात करें, ऑर्गन्स की बात करें, दे कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। और ये जो सारे आपके सेक्शुअल मीटिंग्स होते हैं और कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सी स्पीसीज या किसके साथ उनका मीटिंग हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल बी बेटर एबल टू प्रिडिक्ट कि व्हाट काइंड ऑफ एन सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म द person or the species is going to have, right? And it allow the classification of mating system using extinct genetic and the life history data, and with the information on the spatial and the temporal distribution of fertilization, and it may also predict floral morphology in plants. प्लांट्स के केस में भी यही होता है, इफ़ यू वांट सर्टेन काइंड ऑफ एन प्लांट, तो आपने देखा होगा जनरली जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो इस टाइप की क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर ब्रीडिंग बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, ठीक है। तो उतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जनरली ये तो जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन है जो हम सभी को पता है, राइट। नाउ अब बात कर लेते हैं हम अदर फॉर्म्स ऑफ मीटिंग्स की, कि क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज विद टाइप्स ऑफ मीटिंग, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे, पॉलीगैंड्री, पॉलीएंड्रस, मैरिजेस और मीटिंग के टाइप्स, राइट। उसके आप अंदर जाके उसको कंफ्यूज ना करें, हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो ये क्या क्या हो सकता है, लाइक रैंडम मीटिंग इज वन ऑफ द फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, द मीटिंग बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एनवायरमेंटल, hereditary or social interactions, and hence the potential mates have an equal chances of being selected, and this random mating is also known as panmixia. अब ये panmixia बोले या random mating बोले, both are one or the same. So basically if you remember HWL equilibrium के अंदर there was one condition that need to be fulfilled, that is random mating, right? और हमने ये लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि रैंडम मीटिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपके कोई इन्वायरमेंटल, हेरिडिटरी और सोशल इंटरैक्शंस नहीं होते हैं। On the basis of in the absence of all these conditions, when the mating happen, that is known as the random mating. आपको human being के केस में काफ़ी कम देखने को मिलेगा, because generally we have certain social or hereditary and other things to be taken into consideration while choosing the partner, right? And this panacea or the random mating refers to the situation in a population when there is an equal opportunity of both the sexes to mate and reproduce irrespective of choice of selection. That is what is being told here. और अगर आपको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड मेंशन दिस डेफिनेशन, ठीक है। And it's a situation where there is an absence of culture, rules and regulations that involve preference or avoidance of choices of selection of marriage partner. And if an individual mate or marries without any criteria of selection or choice whosoever, it is called random mating. And this random mating can also refer to those mating with respect to the individual genotype or phenotype, though they may be marrying individual within the community. यानी कि आपको यहाँ जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक ऐसा कोई भी नहीं होता है, that is what is being told here, ठीक है, कि आपको जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक कोई भी फाउंडेशंस यहाँ पे नहीं होते हैं। एंड देयरफॉर दिस also refers to the character which are not involved either directly or indirectly in the choice of selection by the respective mate or marriage partners. And as I told you, it is one of the important criteria for the HWL equilibrium, which ensures in a large population stability of gene frequency over generation. Otherwise, deviation from the random mating, a common phenomenon among the human being, it is important that the factor which changes the gene frequency. अब now
हमने लास्ट क्लास में जब जीन फ्रीक्वेंसी के चेंज की बात की थी तो वी ऑलरेडी सॉ कि आपके जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, तो जीन फ्रीक्वेंसी है इन केस ऑफ रैंडम मेटिंग, हम उसको नहीं देखते हैं, वी जनरली रेफर टू द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज, राइट. दिस इज व्हाट बीइंग क्लियरली मेंशन इन द लास्ट लेक्चर. तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि आपके ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको जनरली नॉन रैंडम मेटिंग्स देखने को मिलेंगी, राइट. आपको रैंडम मेटिंग काफ़ी कम देखने को मिलेगा, और यू मे से कि in terms of the social obligation and all those things, you will generally not find the random mating in the human beings. So this is about random mating, but those who are having confusion regarding the allele frequency, they can definitely go and check out the part 2 of 9.3. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं. It's about the non-random mating. Of course, this is like the opposite of random mating, and you will find such a kind of a mating that has not occurred due to chance. मतलब you intentionally plan it and you choose your partner in order to have a non-random mating, and you will generally find these cases with the human beings, right. Because आपने देखा होगा, if you are following any of the newspaper, you can generally find some matrimonial ads, and there are many matrimonial sites as well, right. There, what do? You generally put your choices in terms of various other things, in terms of caste, in terms of skin color, in terms of occupation. There are various other factors, right. So that can be also categorized under the non-random mating. So you can write the example of arranged marriage in non-random mating. ठीक है. So non-random mating occur in a population with similar phenotype individual mate more frequently with each other than with the dissimilar phenotype, and this is known as the positive or the assortative. So basically non-random mating को भी आप दो categories में divide कर सकते हैं. One is the positive one, another one is the negative one. And why this positive and negative? Based upon the phenotypic similarity. So basically अगर इसको again हम एक example से समझने की कोशिश करें, phenotypes क्या होते हैं? Observable characteristics होते हैं. Similar phenotype means suppose like you are from India, or you are choosing some partner from South Asia, right. They will be definitely having some dissimilarity from the people of the Southeast Asia, or the people from America or any of the other continents. कहीं ना कहीं कोई आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर. तो इफ़ यू आर प्रेफरिंग समवन विद अ सिमिलर फिनोटाइप, देन हम उसको पॉजिटिव कहेंगे. अगर आप मान लीजिए इंडियन having a partner with an Indian only, that could be categorized under the positive or the assortative. और दूसरा आपका नेगेटिव कब होगा? when you have the dissimilar phenotype, यानी कि दो अलग अलग phenotypes characteristics, मतलब observable characteristics, of course some physical characteristics की यहाँ पे बात करें, so that would be negative or disassortative. ठीक है. So this is what, अब आप इसको represent करना चाहे तो you can represent it like this, or I remember we used the same example in the previous lectures as well. So assortative mating आपको कैसे दिखाएंगे? Preferences for the similar genotype or the phenotype. Assortative आप कैसे दिखा सकते हैं? Different genotype or the phenotype. तो basically आप genotype को तो represent कर सकते हैं ना इस तरीके से. These are all what? These are all genotypes. तो अगर ये genotype अपने similar genotype से mating कर रहा है, that would be considered as the assortative, and if this genotype is mating with this one, then this would be disassortative, right. अब हम assortative को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, so that in case if you have to write it as an answer, तो आपके पास कुछ 50-60 वर्ड्स तो होने चाहिए इसको लिखने के लिए, राइट. सो इन केस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन अगर आप बात करें, फ्रॉम सिंपल सोसाइटीज ऑफ ट्राइब्स टू द कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज ऑफ अर्बन मेट्रोपोलिस, पीपल यूजुअली लाइक टू सेलेक्ट देयर मैरिज पार्टनर्स, मेट्स और स्पाउसेस. That's very obvious, right? And non-randomly with desirable characteristics of their liking. As I told you, you can have some characteristics related. You can have some preferences related to occupation, skin color, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. और ये जो assortative mating है, this is an important factor of non-random selection of mate that exists in all human societies. और ये assortative mating क्या है? This is also one of the deviations from the random mating under the HWL equilibrium. Because HWL में हम क्या बात करते हैं? HWL में हम बात करते हैं non-random mating की. And assortative mating क्या है? It is a form of random mating. So that means assortative mating आपकी क्या है? It's a diversion from the HWL, right? HWL से ये एक diversion है. And according to HWL, the gene frequency in a population is expected to change as a result of non-random mating due to assortative mating. And the marriage between the close relative is a special case of assortative mating. This you should star mark, because आगे जो हम अभी consanguineous और non consanguineous के ऊपर जाने वाले हैं,
तो वी विल डेफिनेटली सी सम केसेस वेयर देयर मेटिंग विल बी हैपनिंग इन बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, जिसे आप कंसिन्यूनियस मेटिंग्स भी कहेंगे। तो हम उसके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। तो आपके क्लोज रिलेटिव्स के बीच में जो मीटिंग्स होती है दैट इज़ लाइक स्पेशल केस ऑफ असोसिएटिव मीटिंग, क्योंकि उसके अंदर भी आप सिमिलर फिनोटाइप और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, राइट। एंड द क्लोजर द किनशिप द मोर एलील शेयर्ड एंड द ग्रेटर द डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग, एंड दिस इनब्रीडिंग कैन अल्टर द जीन पूल। और इस अल्टरेशन ऑफ जीन पूल की वजह से भी आगे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो हम आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि असोसिएटिव मेटिंग का ही एक स्पेशल केस है कंसिक्यूनियस मैरिज और मेटिंग, व्हाटएवर यू कैन से, राइट। और ये जो आपके चॉइसेस ऑफ मेट सिलेक्शन इज मोर concerned directly with respect to some specific phenotype characteristics, and it might involve indirectly or other characteristics which are associated or related to the selected trait. जैसे कि आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए, तो देयर इज नथिंग लाइक मच टू इलेबोरेट इनटू इट, कि काफ़ी इजी टॉपिक्स है, यू शुड बी एबल टू ग्रास्प इट, ठीक है। आई जस्ट इंक्लूडेड सो दैट आपके पास लिखने के लिए कुछ चीज़ें हो जाए। यू कैन ऑफकोर्स रिप्रेजेंट इट डायग्रामेटिकली, दैट हैज़ सम लेवरेज एवरीवेयर, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्जामिनर के लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना, राइट। तो यू कैन यूज़ सच एन डायग्राम, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इफ़ यू वांटेड टू ऐड मोर, राइट। सो अब हम एक वैल्यू एडिशन देख लेते हैं। वैल्यू एडिशन इज रिलेटेड टू नॉन रैंडम मेटिंग एंड सेक्शुअल सिलेक्शन। हमने पहले ही ब्रीफली थोड़े बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट में बात करी है सिग्निफिकेंसेस ऑफ सेक्शुअल सिलेक्शन की। तो अगर आप नॉन रैंडम मेटिंग और सेक्शुअल सिलेक्शन के रिलेशनशिप को देखें तो हाउ कुड यू लाइक रिलेट दीज टू, उसके बारे में हम इस स्लाइड में देखेंगे। See, but again, we are not going to see anything new into this, but we will try and interlinkage many of the things that we already know, ठीक है, so that you will be better able to understand कि हर टॉपिक के लिए आपको नई नई चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, but the knowledge that you have gained, you can basically try and connect the dots. तो अगर हम बात करें नॉन रैंडम मेटिंग और सेक्शुअल सिलेक्शन के बीच के रिलेशनशिप की, तो ऑफकोर्स वी ऑलरेडी नो कि जो आपकी रैंडम मेटिंग है WL इक्विलिब्रियम के लिए इज़ वन ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशन। लेकिन नॉन रैंडम मेटिंग जब होती है तो आपकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज जो और अलील फ्रीक्वेंसी में से जो अलील फ्रीक्वेंसी होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, लेकिन आपके रैंडम मेटिंग के केस में दैट इज मेंटेन्ड, राइट। सो नॉन रैंडम मेटिंग आपको जनरली नेचर में देखने को मिलेगा थ्रू दी सेक्शुअल सिलेक्शन। अगेन गोइंग बैक टू द एग्जाम्पल दैट वी सॉ इन दी स्टोरी बोर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, जिसके अंदर हमने पीकॉक और पीहन के बारे में बात की थी। वी रिमेंबर कि आपके पीहन्स जो है दे जनरली चूज अ पार्टनर विथ हैविंग ब्राइट फेदर्स, और भी बहुत सारे जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको अपनी तरफ प्रभावित करते हैं, दे बेसिकली चूज देम, राइट। और इन सेक्शुअल सिलेक्शन में एन इंडिविजुअल चूज अ मेट बेस्ड ऑन द ट्रेट्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी प्रेफरेबल, एंड सच अ ट्रेट कुड बी लाइक एनी ऑफ दीज थिंग्स, राइट, जो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। और फीमेल्स मोर देन मेल्स आर सेलेक्टिव वाइल चूजिंग मेट्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सर्वाइवल फॉर द यंग। आप जिस भी केसेस में देखेंगे मोर ऑफन यू विल ऑब्जर्व दैट द फीमेल आर एट द पोजिशन वेयर दे आर चूजिंग द मेट्स डिपेंडिंग अपॉन सर्टन कंडीशंस, राइट। तो इतना अभी तक आपको पता चल गया। नाउ कमिंग बैक टू कि जो आपकी नॉन रैंडम मेटिंग है ये आपकी अलील फ्रीक्वेंसी चेंज कर देती है पॉपुलेशन के अंदर। सो द इंडिविजुअल विद डिजायर्ड ट्रेट्स आर सेलेक्टेड फॉर मेटिंग मोर ऑफन देन दोज विदाउट दीज ट्रेट्स, राइट। तो इवेंचुअली क्या होगा विद जेनरेशन, अगर आप इसी टाइप का सेक्सुअल सिलेक्शन देखते रहेंगे, सो देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम when you will see the desirable characteristics will be observed in more often will be observed more often, right, क्योंकि ज़्यादातर जो females की preferences थी that was towards those mating partners only. So over generation allele of the selected individual will occur more often in the population gene pool, right. आपको जीन पूल में बदलाव देखने को मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल ऑब्जर्व सर्टेन चेंजेस इन द जीन पूल, एंड एज सच दिस सेक्सुअल सिलेक्शन कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन एवोल्यूशन। सो ऑफकोर्स सेक्सुअल सिलेक्शन से अल्टीमेटली क्या होगा, आपका एवोल्यूशन होगा। और सिलेक्शन में और एवोल्यूशन में भी एक स्टार्क डिफरेंस है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड में आने वाले में देखेंगे कि सिलेक्शन और एवोल्यूशन को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड द बिगेस्ट डिफरेंशिएशन इज कि जो आपका सिलेक्शन है बेसिकली आप किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हो यहाँ पे, राइट। सेक्सुअल सिलेक्शन में सर्टन इंडिविजुअल हैविंग सर्टन फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी काइंड ऑफ एन सेलेक्टेड, एंड अल्टीमेटली इवोल्यूशन कब होगा, जब उस सिलेक्शन की वजह से यू विल सी चेंजेस like via generation to generation. So that is how like you can correlate these two, right. And in order for a population to exist in HW equilibrium, natural selection must not occur.
ये हमने देखा था कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, ये तो सारे आपको पॉइंटर्स याद हो जाने चाहिए अब तक, राइट? And when natural selection occur, individuals in a population that are best adapted to their environment survive and produces more offspring than the individual that are not so well adapted. And this result in the change in the genetic makeup of the population as more favorable allele are passed on to the population as a whole. So basically आपका natural selection तो हो रहा है यहाँ पे, right? और अगर natural selection होगा तो उस वजह से जो आपकी पॉपुलेशन है जो कि बेस्ट अडेप्टेड होगी फॉर सर्टन कंडीशंस, बिकॉज अगेन हम पीकॉक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, उस केस में प्रेडेटर्स वेर मोर एबल टू catch the peacocks having such large feathers because they were not being able to hide. But even though कोई ना कोई उनको फेवर कर रहा था, that was sexual selection. And sexual selection is what? Sexual selection is ultimately evolutionary forces acting for the natural selection. So that is how they are being टेकन फॉरवर्ड. और यहाँ पे आप इसको नॉन रैंडम मेटिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉन रैंडम मेटिंग, जिसके अंदर आपके सेक्शुअल सिलेक्शन हुआ है एंड सेक्शुअल सिलेक्शन से आपकी पॉपुलेशन का इवैल्यूएशन हुआ है, राइट? तो आई होप यू आर लाइक एबल टू कॉम्प्रीहेंड दीज थिंग्स इन योर माइंड, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग like a concept in itself. It is a concept that you need to interlink. Let's summarize it with a flowchart. Suppose there is certain random mating happening, but there is also certain mutations. मतलब random mating हो रही है but mutation भी हो गया. That means आपका HWL equilibrium यहाँ पे act नहीं कर पाएगा, right? यहाँ तक चीज़ें clear है? Then अगर mutation हुआ है तो genetic makeup of the individual में भी कुछ variations आएंगे. हमने शुरू से देखा हुआ है कि अगर म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन की वजह से आपके न्यूक्लियोटाइड्स में कुछ चेंजेस आते हैं, राइट? मान लीजिए ये आपका ATCG है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आया. इस चेंजेस की वजह से क्या होगा, आपकी जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, कुछ चेंजेस आपके जीन्स में देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से आपका जेनोटाइप भी वेरिएंट होगा. देन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये जितने भी आपके चेंजेस आएंगे जीनोटाइप्स में, वो कहीं ना कहीं जाके आपके phenotypic variations में भी आपको देखने को मिलेंगे. What would that mean? Suppose there is a certain kind of a mutation that will enable the person to have thick hairs. ठीक है, although human beings को you will find they have hair all over their body, but in this kind of a mutation मान लीजिए ऐसा होता है कि human beings are acquiring more and more hair on their body, right? अब यहाँ तक तो हमने देख ली चीज़ें. This is still now we have seen. अब क्या होता है कि there is certain kind of an environment. Suppose there is a very cold environment. और हमें पता है cold environment में क्या होता है, generally the animals जो हमने पढ़ा हुआ है और देखा हुआ है, those who are having a thick fur, they are better able to survive, क्योंकि वो cold से अपने आप को protect करके रख पाते हैं. और हमने यहाँ पे क्या देखा है, because of certain mutation, the genotypic frequency led to the changes in the phenotype that resulted in the more body hair growth, right? तो अब इस कोल्डर एनवायरनमेंट में जिस भी ये जो फिनोटाइपिक चेंजेस हुए हैं, दे विल बी बेटर एबल टू सर्वाइव, बिकॉज अब यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा. नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जो भी सर्वाइवल के लिए जिसके बेटर चांसेस निकलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हम बात करते हैं, वही आगे चल के रिप्रोड्यूस कर पाता है एंड उस इन्वायरमेंट में रह पाता है, राइट? एंड द इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप विद अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, and some phenotype are more likely to survive and leave more offspring relative to the other phenotypes. So suppose अब इसको ये वाले जो है, they are having thick hair on their body growth. So दूसरे ऐसे कुछ individuals हैं वहाँ पे जो normal human beings हैं and they are having the normal hair, body hair like the human being used to have. तो अब इन cases में क्या होगा, जिनके पास ज़्यादा hair growth है they will be better able to survive, जिनके पास कम है, राइट? बिकॉज ये कोल्डर एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे एंड दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव टू एन एक्सटेंट. मतलब इनके चांसेस ज़्यादा बढ़ गया. आई एम नॉट टेलिंग कि वो बिल्कुल मर जाएंगे, बट हाँ, दे विल बी बेटर एबल टू सर्वाइव. तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके जो बेटर सर्वाइवल वाले जिनके चांसेस होंगे, दे विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफस्प्रिंग एंड मोर ऑफ देयर अरील एसोसिएटेड फिनोटाइप आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ऑफकोर्स बिकॉज वो सर्वाइव करेंगे, उनके फिनोटाइप्स आगे आपको उनके ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेंगे, तो वो सारे चेंजेस आएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द पॉपुलेशन. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, हमने यहाँ पे देखा कि कुछ तो ऐसे भी पॉपुलेशन थे जिनके पास कम हेयर ग्रोथ थे, कुछ के पास ज़्यादा थे, लेकिन ये ज़्यादा वाले हैं ये इनको ओवर पावर करेंगे, राइट? कुछ इंटरमिक्सिंग होगी, कुछ एलील फ्रीक्वेंसीज में चेंज होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट कैन हैपन ना दैट बोथ ऑफ देम विल बी मेटिंग.
तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस तो अलील फ्रीक्वेंसीज में देखने को मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी आपके ओवरऑल जो पॉपुलेशन होगा उसमें आपको एवोल्यूशन देखने को मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट द एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट. सो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि सिलेक्शन और एवोल्यूशन में अगर आपको डिफरेंस देखना हो तो स्लाइट डिफरेंस की सिलेक्शन जो आपका होता है वो आपके एक इंडिविजुअल के ऊपर एक्ट करता है, बट एवोल्यूशन विल टेक जनरेशंस टू इवॉल्व, राइट. आपको एक पूरा का पूरा एवोल्यूशन ही देखने को मिलेगा, हम वो चाहे ह्यूमन बीइंग के एवोल्यूशन की बात करें या किसी और चीज़ की भी, राइट. ये बिल्कुल ऐसा फास्ट एंड स्टीडी प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम. तो आई होप दिस समराइजेज व्हाट वी जस्ट सॉ इन दी रिलेशनशिप बिटवीन नॉन रैंडम मेटिंग एंड सेक्शुअल सिलेक्शन. आप इसको चाहे तो थोड़ा बहुत और भी सोच करके यू कैन मेक अ बेटर नोट्स आउट ऑफ इट, because this is how like you will be better able to interlink it. Then to conclude about the assortative or dissortative mating and sexual selection, so better you should know कि इन दोनों के बीच में जो भी differences है वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एसोरेटेटिव और डिसोरेटेटिव की बात करते हैं तो इसमें आपको कोई भी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यानी कि नो जीनोटाइप इज मोर अडेप्टिव देन द अदर, इट डिपेंड्स अपॉन चॉइस, राइट. और ऐसा नहीं है कि आपकी चॉइसेस इस पे डिपेंड करेगी या आपकी चॉइस से ये मैटर करेगा कि कौन सा जीनोटाइप सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन में ज़्यादा अडेप्टिव है या क्या है, राइट. एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेटिंग. बट इन केस ऑफ सेक्शुअल सिलेक्शन क्या होता है, आपकी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होती है. सर्टेन type of an genotype are more adaptive, but all members of the population do not have the equal probability of mating. हो सकता है जिनके जो certain characteristics है वो females को ज़्यादा पसंद आए and they prefer those kinds of an mates only. और जो इसके अंदर relative frequencies होती है वो भी change हो सकती हैं, और जो आपकी genotypic frequency होती हैं वो भी change हो सकती है in case of sexual selection, right? तो अगर आपको इन दोनों को भी summarize करके देखना हो तो you could definitely see that. Now coming to important topic that is known as inbreeding. अब ये inbreeding क्या है? Definitely this inbreeding is related to the main topic that we are going to read. So inbreeding में क्या होता है? Inbreeding में basically as the name suggests itself, इसके अंदर जो आपकी marriages होती है societies में, they takes place between the relatives. And in general, breeding among close individual within a group is referred to as inbreeding. And it is applicable in the case of plants and animals as well. And why we are saying in general breeding among close individual, because it need not to be necessary that the marriage has to take place. हम यहाँ पे reproduction के ऊपर focus कर रहे हैं, ना कि marriage as a institution के ऊपर. So अगर वो breeding आपके किसी भी close individual के बीच में होती है तो that could be referred to as inbreeding. और ये आपके plants के केस में भी होता है और animals के केस में भी होता है. और ये जो extent है of the inbreeding, it depends on the amount of common ancestry shared by the parent of the inbreeded child. Or in the genetic terms, it is the proportion of the genes that the parents have in common. And it is opposite to outbreeding, referring to the breeding with an individual from outside the group. So outbreeding के और inbreeding के बीच में क्या differences है, और भी इससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं लाइक क्रॉस ब्रीडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए. अगले स्लाइड्स में उनको भी देख लेंगे. और जो आप ह्यूमन सोसाइटीज़ की बात करते हैं जहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड अमंग दी रिलेटिव्स, उनको आप कंसिग्यूनियस मैरिज भी कह सकते हैं या इनब्रीडिंग भी कह सकते हैं. तो समटाइम्स इन एग्जाम इफ़ यू मे आस्क टू राइट अबाउट इनब्रीडिंग, तो आपको बेसिकली कंसिग्यूनियस मैरिजेस के बारे में ही पूछा जा रहा है. तो यू नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड इन बिटवीन दीज टू, राइट. और जो आपके कंसिग्यूनियस है इज मोर विथ रेफरेंस टू द कल्चरल कंटेक्स्ट एंड इनब्रीडिंग इज मोर विथ रेफरेंस टू द जनरल ब्रीडिंग दैट इंक्लूड मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म. क्योंकि आप ये कंसिग्यूनियस मैरिज आप किसी डॉग ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, राइट. किसी प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे. कंसिग्यूनियस टर्म इज preferably used for the human mating in the cultural context. That you need to remember. So in case अगर आपको as a sub part of the question भी पूछ लिया जाता है कि आप inbreeding के बारे में बताएं and how inbreeding differs from the consanguineous marriage, then you can definitely write because both are one or the same using interchangeably. लेकिन आपके जो consanguineous marriage है उसके केस में आप human और cultural context, societal context को focus रखते हैं, but in case of inbreeding it's like the generic term used in the genetics, right? सो ये एक एग्जाम्पल है ऑफ द इनब्रीडिंग. हियर इन दिस केस यू कैन सी कि अगर कोई एक प्योर लैब्राडोर डॉग की ब्रीड है, इट इज़ डूइंग एन इनब्रीडिंग विद द पॉडल, तो अल्टीमेटली आपको लेब्राडोरल्स देखने को मिलेंगे. सो हियर इज़ द लेब्राडोर, हियर इज़ द पॉडल एंड हियर इज़ देयर ऑफस्प्रिंग, दैट इज़ द लेब्राडोर. ठीक है. तो अल्टीमेटली अगर ये एक जनरेशन है एंड देयर इज अनदर जनरेशन जिनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग हुई एंड यू प्रोड्यूस द लेब्राडोरल, तो अगर इन दोनों के बीच में फिर से इन ब्रीडिंग होगी तो व्हाट यू विल गेट अल्टीमेटली, यू विल गेट अनदर
जनरेशन ऑफ लेब्राडूडल, ठीक है। तो ये एक पार्ट ऑफ इनब्रीडिंग ही है, इट फॉलोज जनरेशन टू जनरेशन। अब अगर ये लेब्राडूडल विल अल्टीमेटली ब्रीड विद सम अनदर वेराइटी, तो आपको वहाँ पे कुछ अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो इन केस लाइक इफ यू आर राइटिंग अबाउट द इनब्रीडिंग, यू कैन डेफिनेटली प्रेजेंट सम एग्जाम्पल्स लाइक दिस। आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इन केस ऑफ प्लांट्स और भी बहुत सारे एनिमल्स के केस में। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग? तो एज आई टोल्ड यू, आपको ब्रीफली इन दोनों के बारे में डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, सो दैट अगर पूछ लिया जाता है तो यू विल बी बेटर एबल टू आंसर। इनब्रीडिंग ऑफ कोर्स जो आपके क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में, तो हियर इट इज़ बीइंग हैपनिंग इन बिटवीन टू वैराइटीज ऑफ डॉग स्पीसीज, राइट। ऐसा तो नहीं एक डॉग है और एक घोड़ा है, राइट। देयर इज लाइक बोथ आर डॉग्स, नॉट द डॉग एंड द हॉर्स। सो इट हैपन्स इन बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। आउटब्रीडिंग क्या होता है? ब्रीडिंग बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट ब्रीड, and the same breed for the 4 to 6 generation, and the selected breed having no common ancestor for 4 to 6 generation, and mating is between the same species, and mating can be between the different species. So this is like one of the important point of differentiation in between the inbreeding and the outbreeding. और ब्रीडिंग सिस्टम को अगर आपको ओवरऑल कैटेगराइज करना हो तो आप इसको इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग में कर सकते हैं, एज वी हैव सीन हियर। और इन ब्रीडिंग के अंदर भी आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंक्लूडेड सो दैट अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि आप क्रॉस ब्रीडिंग किसे कहते हैं, आउट ब्रीडिंग किसे कहते हैं, प्योर ब्रीडिंग किसे कहते हैं, बिकॉज दीज आर द जनरल टर्म दैट यू माइट you don't know if you are a dog lover or if you have interest in all these things. So outbreeding के केस में आप देखिए, इसी के केस में आपके प्योर ब्रीडिंग, लाइन क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप और स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे कैटेगरीज आते हैं। बट इतने डिटेल में हमें इन सब के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू नो अबाउट इज इन ब्रीडिंग, जो आपके इस प्रेजेंट लेक्चर का कंटेक्स्ट है। और यहाँ पे इन ब्रीडिंग और इंटर ब्रीडिंग के बीच में भी एक डिफरेंस है दैट यू नीड टू नो, वो आप अपने आप से भी देख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, अगेन नॉट वेरी नेसेसरी टू नो। Now here comes the main topic, that is the consanguineous mating. So again this is not a new term, हमने पहले भी marriage में consanguineous mating या consanguineous marriage के बारे में देखा हुआ है. So what are basically those? They are basically the marriages happening in between the close blood relative. और हमें ये भी पता है कि किन्स दो टाइप के होते हैं आपके, consanguineous और affinal, right? आप consanguineous किन को बोलते हैं? जो कि blood relations के हों, और जो आपके affinal किन्स होते हैं they are related by the in terms of marriage, right? So those are the affinal kins. तो जो भी आपके marriages होंगे in between the consanguineous or the people or the kin having the common ancestor, that you call the consanguineous mating, right? तो इसके examples भी आपके बहुत सारे हो सकते हैं, marriages happening in between first cousin, marriages happening between brother and sister, और ये सारी चीज़ें. In fact, the incest taboo is also one of the examples, right? तो we'll see कि क्या क्या historical context भी है इसका, लेकिन first briefly let's understand it in terms of the genetics, because अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम socio-cultural anthropology नहीं पढ़ रहे, we are studying the physical anthropology, right? So it becomes necessary for us to know the genetic point of view behind this consanguinity. So generally अगर आप बात करें इनब्रीडिंग की, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सो इनब्रीडिंग और कंsanguinity कभी कभार आपको इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हुए दिख जाएंगे, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक हाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट इफ यू हैव टू आंसर द डिफरेंसेस इन बिटवीन दीज टू. और जो आपकी कंsanguinity और इनब्रीडिंग है, एंड दे आर मोर ऑफन कन्फ्यूज्ड बिकॉज मैनी ह्यूमन एग्जिस्ट एंड मैरी इन मोर और लेस क्लोज्ड फाइनाइट पॉपुलेशन, and any two marriage partner may have more or less distant common ancestor and are therefore consanguineous distant cousin. And this cases you will find in most of the societies, like the Muslim community also practice such a kind of a consanguineous marriage. तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ तो देखने को मिल जाएंगी. But अगर आप बात करें कि जो भी offsprings होते हैं of this consanguineous marriages, they should at least have a calculable F. And what is this calculable F? This is the coefficient of inbreeding. अब ये coefficient of inbreeding क्या होता है, don't worry, आगे जब हम genetic वाला इशू देखेंगे ऑफ द consanguineous mating, उस टाइम पे we will get to know कि ये inbreeding coefficients और भी आपके बहुत सारे कुछ टर्म्स आएंगे, हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं. बट अभी के लिए आप जान लीजिए कि ये जो आपके ऑफस्प्रिंग्स होंगे ऑफ दिस consanguineous marriage, दे शुड एटलीस्ट हैव अ कैलकुलेबल एफ, तभी आप उनको एक कैटेगरी में रख पाएंगे दैट दे आर हैविंग द consanguineous
marriage, right? And all the population are to some degree inbreed and as measured by the average F over all individual in population and which is inversely proportional to the size of n. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए there is n, that is the number of individual or the population, तो ये एक population है, तो ये population जितनी छोटी होगी आपका जो inbreeding coefficient है वो उतना ज़्यादा होगा, right? क्योंकि छोटी population होगी आपस में ही लोग mating करेंगे and you will find the inbreeding coefficient to be on a higher side. That is why it is being said कि ये आपका inversely proportional होता है to what? To f is inversely proportional to n, right? So this is it. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. And this may occur deliberately in a society where sibling to sibling or first cousin marriages are encouraged, as sometimes occur for the religious reason or to keep the property in the same family. We already discussed all these reasons like why consanguinity happened in so and so cases. और आपके western societies में they often discourage the first cousin marriage but attach no onus to the marriage between second or higher degree cousin. And most people may be unaware of फोर्थ टू फिफ्थ डिग्री कज़न बिकॉज वेस्टर्न सोसाइटीज़ में मोस्टली आपके क्या होती हैं चीज़ें, you don't know really about who are the extended family members, right? You keep yourself confined to a very nuclear family. तो ultimately ये इतनी दूर तक बात ही नहीं जाती आपके फोर्थ और फिफ्थ डिग्री कज़न कौन है कहाँ है, you generally don't know about this, ठीक है? तो उस केस में भी अब ये क्वेश्चन भी अगेन ये ऑलरेडी आपको ये दिख रहा होगा कि ये 2-3 सेंटेंसेज यहाँ पे 2-3 लाइन्स लिखे हुए हैं, बट इट मे अपियर इन फॉर्म ऑफ एन क्वेश्चन कि आपको वेस्टर्न सोसाइटीज़ में या न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कंसिक्वेंस मैरिज क्यों नहीं देखने को मिलते हैं. सोसाइटी वेयर न्यूक्लियर फैमिलीज प्रिवेल वहाँ पे आपको कंसिक्वेंस मीटिंग देखने को कम मिलती है, ऐसा क्यों होता है? एंड देयर कुड बी लाइक वेरियस dimensions to that question, but yeah, coming back to the topic, and from a strictly biological point of view the term is inappropriate क्योंकि आपका जो कंसिग्यूनस मेटिंग हम बात करते हैं और कंसिग्यूनस मैरिज की बात करते हैं तो वी जनरली टॉक अबाउट द क्लोज ब्लड रिलेटिव. लेकिन जब आप जेनेटिक टर्म्स में बात करते हैं तो हमें ये पता है कि जेनेटिक्स में आप जीन्स के ऊपर बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लड कि खून तो पास ऑन नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं आपके माँ बाप का खून आपके अंदर आ गया. ऑल्दो जनरल टर्म में जनरल स्पीकिंग टर्म में यू से दैट, बट व्हाट हैपन इवेंचुअली आपके जीन्स ट्रांसफर होते हैं ना कि ब्लड ट्रांसफर होता है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड कि ये बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कहना गलत है. तो अगेन दिस कैन बी अ फॉर्म ऑफ एन शॉर्ट क्वेश्चन वेयर यू मे आस्क टू सब्सटेंटिएट लाइक व्हाई इट इज नॉट correct to refer the consanguineous mating in terms of biological point of view. ये सही क्यों नहीं है इनको consanguineous mating कहना, ठीक है? And from the genetic perspective, the consanguinity influence the probability of specific combination of genetic characteristics called genotype. और ये जो आपकी consanguinity है, this result in the inheritance from the common ancestor of both parents of transmissible capacities to synthesize and control nucleic acid and protein, that essential substances for all organism. So ultimately what will happen कि आपके ancestor तो common है and there is a consanguineous marriage. So there is parent 1, there is parent 2. So suppose the ancestor has passed on certain genotype, certain genetic variations to the generation. Suppose ये एक ही generation के part है और इस generation में कुछ ऐसे type के genetic variations हुए हैं और वो genetic variations ultimately ये जाहिर सी बात है अगर इन दोनों के ही पास है तो ये अपने अगर child को pass on करते हैं और अगर वो जो भी जेनेटिक वेरिएशंस है और म्यूटेशंस है जनरली एज वी नो आर काइंड ऑफ अ सर्टेन हार्मफुल ट्रेट्स, तो जो चाइल्ड है उसके ऊपर भी असर आएगा. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर कि कैसे आपका जेनेटिक वेरिएशंस इफेक्ट कर सकता है इन केस ऑफ कंसिग्यूनस मैरिज, ठीक है? There is another value addition related to the historical relevance of the consanguinity or the consanguineous mating. So basically यहाँ पे we will utilize this value addition to understand कि consanguineous meetings किस टाइप के सोसाइटीज़ में आपको देखने को मिलती and what were the steps being taken to prevent it and why the steps were taken. So basically आपका वैसे तो हार्डकोर सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कवर होना चाहिए, बट या इंसेस्ट टैबू का भी एक कंसेप्ट है जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, उसको हम यहाँ पे रिलेट करके देखेंगे दैट हाउ इट केम डाउन एंड व्हाई इट केम डाउन, ठीक है? So first of all आपकी जो first degree consanguineous marriage है, that is marriages in between like the close relative, like closest as close as brother and sister. The famous example is of the Cleopatra, right? Cleopatra married many of her own brothers, so to keep the blood pure. और भी उनके अलग अलग अपने
थॉट प्रोसेसेस थे, वी नीड नॉट टू गो ऑन टू दैट. बट अगर हम बात करें आज के प्रेजेंट डे मॉडर्न सोसाइटीज़ में, तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में आपको काफ़ी सारे इंसेस्ट टैबूज देखने को मिलेंगे. सो व्हाट आर दीज इंसेस्ट टैबूज? दे बेसिकली प्रिवेंट सच मैरिजेस. ये कंसिक्वेंस मैरिजेस को प्रिवेंट करते हैं. लाइक to marry a brother and a sister, a father and a daughter, a son and a mother, they are all prohibited under this incest taboos, right? और ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये अल्टीमेटली आज से काफ़ी सालों पहले बनाए गए थे. इट्स नॉट अ वेरी न्यूअर कंसेप्ट, बट जेनेटिक्स इज़ अ न्यू कंसेप्ट, राइट? बिकॉज जेनेटिक्स हमने देखा कि मेंडल ने 1866 में पी प्लांट एक्सपेरिमेंट किया. उसके पहले भी बहुत सारी कम चीज़ें हमें पता थी, डार्विन ने कुछ चीज़ें बताई थी, बट जो एक हार्डकोर आप जेनेटिक्स की बात करें, केम एट अराउंड 1900, राइट? तो उसके पहले तो ये सारी चीज़ें, तो जो आप बात कर रहे हो इजिप्शियन डायनास्टी की और जो भी अलग अलग डायनास्टीज और एम्पायर्स है, दे कम वे बिफोर दैट. तो इनके पास तो जेनेटिक का कोई कंसेप्ट ही नहीं था. बट इवन दो पीपल के पास दिमाग तो था, दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग सर्टन यू कैन से अनडिजायरेबल इन ब्रीडिंग इफेक्ट्स. दिस कुड बी लाइक एनीथिंग. हो सकता है उनको जो कंसिक्वेंस मेटिंग है, उनसे जो ऑफस्प्रिंग है, उनमें कुछ फिनोटाइपिक चेंजेस देखने को मिले, राइट? हो सकता है उनकी इंटेलिजेंस लेवल में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले. एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, ठीक है? तो वो हम अल्टीमेटली जब लास्ट सेक्शन है, दैट इज द जेनेटिक इफेक्ट का क्या होता है आपके कंसिक्वेंस मेटिंग में, उसके अंदर डिटेल में कवर करेंगे. बट या ऑफ कोर्स पीपल वेर ऑब्जर्विंग दोज ट्रेट्स, एंड दैट इज व्हाई केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इंसेस्ट टैबू, सो दैट दे कुड प्रिवेंट सच एन इनब्रीडिंग. और इस इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए और इस टाइप के जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स आ रहे थे बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, उनको प्रिवेंट करने के लिए ऐसे टाइप के इंसेस्ट टैबूज लाए गए. ऑल्दो ये जो आपके इंसेस्ट टैबू का कंसेप्ट है, ये आपके नॉन कॉन्सिक्वेंस रिलेशनशिप्स पे भी होता है, बट दैट डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. जैसे आपका एक एग्जांपल है, चाइनीज सोसाइटीज़ में आपकी जो person है, they can marry his mother's brother's daughter, but the marriage between a male and a female with the same surname is prohibited. तो ये भी एक टाइप का इंसेस्ट टैबू है दैट एग्जिस्ट इन द चाइनीज सोसाइटी. अगेन एज आई टोल्ड यू, ये सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है हार्डकोर, आपको उसके अंदर नहीं जाना है, बट आई जस्ट इंक्लूडेड बिकॉज वी वर बेटर एबल टू रिलेट लाइक इंसेस्ट टैबू क्यों निकल के आया. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको एनालिटिकल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ इंसेस्ट टैबू एंड व्हाई इट came into picture, such a kind of thing, right? So you could definitely utilize all these points. Next is your global consanguinity trend. Again, this comes as a fodder point for you to write any answer. आप इसको जहाँ भी चाहे फिट कर सकते हैं, चाहे वो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हो या जेनेटिक्स का कोई पार्ट हो, लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो आज के भी डेट में आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन में इस टाइप के कंसिक्विनिटी ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली इन मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, as well as among the immigrants from these community now residing in North America, Europe and Australia. Although all over the world you can say, but basically there are certain communities, those who practice such a kind of a consanguineous marriage. That is why you will see कि Middle East, Western Asia, North Africa में आपको कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगे जो इस टाइप के मैरिजेस को प्रेफर करते हैं. एंड द माउंटिंग पब्लिक अवेयरनेस इन द प्रिवेंशन ऑफ कोजेनाइटल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द ऑफस्प्रिंग is driving an increasing number of couples contemplating marriage and reproduction in highly consanguineous community to seek counseling on consanguinities. So although आपको ये prevalence देखने को मिलेगा, but in compare to the earlier society जहाँ पे genetic counseling और इस टाइप के genetic knowledge available नहीं होते थे, present day you will find people are like very much aware about all these things कि कोई deformities हो सकती हैं, so they generally seek counseling before conceiving a child, right? आपको नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और साउथ इंडिया में कंसिक्वेंस मैरिज आर कल्चरली एंड सोशली फेवर्ड एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20 to 50% ऑफ ऑल द मैरिजेस, विद फर्स्ट कजन यूनियन अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ऑल मैरिजेस. एंड इफ यू वांट टू लोकेट इट ऑन द वर्ल्ड मैप एज वेल, यू कैन सी जो भी हमने रीजन की बात की, इट्स लाइक मोर लेस कवर्ड आउट हियर. ठीक है, अब हम इंडिया की स्पेसिफिक बात कर लेते हैं एक दो लाइन्स में. तो इंडिया में एज आई टोल्ड यू कि साउथ इंडिया में आपको इसका प्रेवलेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा. Or as per a review work indicates that the extent of the average inbreeding coefficient among the Muslim population in different states of the country vary from 0.07 in the West Bengal to 0.26 in Madhya Pradesh. And in case of the caste and the tribe, such marriages in different regions shows an average of 0.0325. So again, हम ये inbreeding coefficient जब आगे चल के पढ़ेंगे, you will be better able to see कि ये क्या होता है. But हियर इन केस यू कैन सी कि अलग अलग रीजन्स में भी आपको वेरिएबिलिटीज़ देखने को मिलेंगे. बट ओवरऑल अगर हम कंसिक्वेंस मैरिज के प्रिवेलेंस की बात करें तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल मैरिजेस टेकिंग प्लेस. और इसमें भी आपके जो सदर्न रीजन है, दे आर दी
having the larger chunk of the overall 10%, that is the 23%, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको 3.1% देखने को मिलेंगे, और ये नॉर्थ ईस्ट में आपको सबसे कम कंसिक्वेंस मैरिज देखने को मिलेंगे, बल्कि आपको सदर्न रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे. एंड कास्ट वाइज भी काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, whether like Muslims has the higher prevalence, और Hindus के केस में भी like it's nothing कम, it's also like 9%, but Muslims के केस में it's like 15%, that is more than the 9 of course. ठीक है, तो ये कुछ ट्रेंड्स है that you can mention, because ये कभी कभी यूज़ आ जाता है आपको आंसर लिखने में, स्पेशली इन द कंक्लूजन एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट. ठीक है, और यहाँ पे भी इंडिया के केस में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अलॉन्ग विद द मैप, देन यू कैन डेफिनेटली डू सो. अदरवाइज उतना नेसेसरी नहीं होता है, बट हाँ अगर आप कर सकते हैं इट्स वेल एंड गुड. Now, if you have to present a simple definition for the consanguinity, you may write that a consanguineous marriage or a mating is considered as being between two individuals who are first to fourth degree relative. यानी कि वो first, second, third, fourth किसी भी डिग्री के रिलेटिव्स हो सकते हैं, as you may like say first cousin, second cousins, जितने भी होते हैं. ठीक है, and when considering first degree relatives, the term incestuous marriage or mating is often used. तो अगर आपको इंसेस्टिवस मैरिज के बारे में भी पूछ लिया जाए, दैट मीन्स यू नीड टू टॉक अबाउट द मैरिज इन बिटवीन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, यानी कि आपको इसके बारे में बात करनी है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो इसीलिए आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा. एंड द डिग्री टू विच टू पीपल आर रिलेटेड इज यूजुअली मेजर्ड वाया द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस. रिमेंबर हमने कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग की बात की थी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ. उसी तरह से आपका कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस भी है. तो ये हम जो आपका लास्ट टॉपिक होगा जेनेटिक इफेक्ट्स के अंदर, उसमें कवर करेंगे, बिकॉज इट विल बी मोर रेलिवेंट देयर. क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कंसिक्वेंस और नॉन कंसिक्वेंस क्या होता है उसके एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझना है पहले. ठीक है, एंड द वैल्यू जनरेटेड रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ द आइडेंटिकल और बाय डिसेंट अलील दैट टू इंडिविजुअल विल शेयर. ऑलराइट, यानी कि आपके जो रिलेटेडनेस है इससे आपको ये पता चलेगा कि द प्रपोर्शन ऑफ द आइडेंटिकल और द डिसेंडेड एलील्स वो दोनों इंडिविजुअल में कितने हैं, कितना रिलेशन वो दोनों एक दूसरे से कितने रिलेटेड हैं इन सिंपल टर्म्स. राइट, सो देयर आर लाइक फ्यू बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज ऑफ कंसिक्वेनिटी वर्सेस द सोशल बेनिफिट ऑफ द कंसिक्वेनिटी. तो इसको आप रूरल और अर्बन के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द रूरल सोसाइटीज़ मोस्टली, और वहाँ पे आपको बायोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन में सोशल बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलता है. तो दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव. ऐसा नहीं है कि सोशल सेटअप में आपके कंसिक्वेंस मैरिजेस से जो होने वाले डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक वेरियस रिसेसिव डिसऑर्डर्स एंड ऑल, वो कम हो जाते हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटल पर्सपेक्टिव में जो बायोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस होते हैं द रूरल एरियाज इन टर्म्स विद द कंसिक्वेनिटी, वो आउटवेट कर जाते, उनसे ज़्यादा आउटवेट कर जाते हैं आपके सोशल बेनिफिट्स. ठीक है, और अर्बन के केस में जो बायोलॉजिकल है दे आर ऑफ कोर्स हैविंग मोर वेटेज. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये इस वेटेज की बात नहीं कर रहा है कि वहाँ पे कम नुकसान होगा और रूरल में कम नुकसान होगा और अर्बन में ज़्यादा होगा. इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सोशल कंटेक्स्ट ओनली. तो ये आप मान के चलिएगा. अगेन दिस कैन बी ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ सम और द अदर क्वेश्चन, सो यू शुड नीड टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट. ठीक है, और दूसरा अगर हम कंसिक्वेनिटी का एक ओवरऑल अगर आपको देखना हो, लाइक व्हाट आर द वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स, या नेट फर्टिलिटी पे इसका क्या असर होता है, देन मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी. तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो सेग्रीगेट करके भी एक इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ भी आप कर सकते हैं. और इन केस अगर आपको पॉइंटर्स ही मेंशन करने हैं तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन दी पॉइंटर्स एज वेल. जैसे कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है. आपको ज़रूर पता होगा कंसिक्वेंस मैरिजेस जिस भी सोसाइटीज़ में फॉलो होती है, जनरली दे ट्राई एंड प्रिवेंट द एक्सचेंज ऑफ मनी और यू कैन से डाउरीज. उस केस में उनको डाउरी नहीं देना पड़ता है. और दूसरी बात ये है लाइक दे आर रिलेटेड एंड दे आर फैमिली, सो दे कंसीडर कि फैमिली फ्यूड्स नहीं होंगे, तो बहुत सारे अपने सॉलिडारिटी को कंसीडर किया जाता है. और फीमेल ऑटोनॉमी भी होती है. देन मैरिटल वायलेंसेस वगैरह भी जो होते हैं उनको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर फैमिली में कर रहे हो तो यू कैन यू नो डेफिनेटली सबसाइड ऑल दीज नेगेटिव इम्पैक्ट्स. और डाइवोर्स रेट्स भी ऐसा माना जाता है कि आपके कंसिक्वेंस मैरिजेस में आपको कम देखने को मिलेंगे, बिकॉज अगेन यू आर रिलेटेड टू योर वेरी क्लोज नेट रिलेटिव्स. तो उस केस में डाइवोर्स होना इज़ लाइक समवॉट अ वेरी फार फेच्ड आइडिया. उसी तरह से नेट फर्टिलिटी पे क्या असर होता है, मॉर्बिडिटी पे असर क्या होता है, मोर्टेलिटी पे असर क्या होता है. यू कैन सी लाइक देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन मच इनटू इट,
बट हाँ, आपको अगर नहीं पता है इन सब में डिटेल में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जब नोट्स बना रहे हैं, यू कुड एबल टू राइट इट डाउन लाइक 2-3 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ दीज थिंग्स, राइट? दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी रिप्रेजेंट की गई है। आई फाउंड दिस टू बी मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वैसे ईजियर रिप्रेजेंटेशन आपका यही है, लेकिन ये वाला भी एक काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। आप चाहे तो इसको पॉज करके भी एक बार देख सकते हैं। दिस इज द सेम थिंग कि कैसे आप कंसिक्वेंटी को सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी, इन सब चीज़ों में कैसे रिलेट करके देखते हैं, ठीक है? तो आई सजेस्ट कि इसको और इसको आप इन दोनों स्लाइड्स को यूज़ करके यू कुड prepare a very better notes regarding the impacts of consanguinity, right? Then there is a question like why consanguineous marriage is culturally favored. Then again, ये भी आपका socio cultural economy का ही पार्ट है, but we are covering this consanguineous marriages in detail. That is why I thought कि आपको इसका भी एक brief understanding थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो अगेन इसका कल्चरली फेवर होने के लिए हमें कुछ अब नई चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी है। बेसिकली इफ़ यू आर लाइक वाइज एनफ, और अगर आप जीएस में सोसाइटी के अंदर अच्छा आंसर्स लिखते हैं, तो आप इन्हीं अगर पॉइंटर्स को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे तो यू विल बी बेटर एबल टू आंसर कि कल्चरली क्यों फेवर किया जाता है, ठीक है? लेट्स सी, एक कुछ फ्यू पॉइंट्स यहाँ पे भी मेंशन किए गए हैं कि आपके कंसिक्वेंस मैरिजेस बेसिकली सबसे इसका प्राइमरी फोकस तो सोशल होता ही होता है, और जो कम्युनिटीज़ होती है जहाँ पे कंसिक्वेंटी रेट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वहाँ की सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ ये बताती हैं that consanguineous marriages could enforce the couple's stability due to higher compatibility between the husband and the wife who share the same social cultural relationship. Basically यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि वो एक ही सेटअप से बिलोंग करते हैं, तो उनका आपस में मेल जोल बहुत आसानी से हो सकता है. There won't be any kind of differences in terms of socio-cultural thought processes as well. और कॉन्सिक्वेंस मैरिजेस में भी आपको वुमेन का स्टेटस भी काफ़ी अच्छा होता है, इंक्लूडिंग द वाइफ्स बेटर रिलेशनशिप विथ हर इन लॉज हु कुड सपोर्ट हर इन टाइम्स ऑफ नीड. ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, ये वही सारी चीज़ें हैं कि फीमेल अटोनॉमी होती है, आपके मैरिटल वायलेंस कम होते हैं, डाइवोर्स रेट कम होते हैं. तो अगर आप चाहें तो इसी को एक्सपैंड करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एंड सिमिलरली और भी जो अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे कि नेट फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है, आप इसको भी एक तरीके से क्वेश्चन के टर्म्स में फॉर्म कर सकते हैं, एंड यू कुड राइट एन आंसर रिलेटेड टू दैट. ओके, आई होप आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा दैट व्हाई वी आर टेकिंग अप ऑल दीज वैल्यू एडिशंस. इट्स नॉट जस्ट कि ये वाला आई एम गिविंग यू लाइक ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा. नो वन टू टेल यू दैट बिकॉज यूपीएससी फ्रेम द क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन देयर like wide understanding, but what we can do is we can prepare ourselves for the worst and the good, right? देन नॉन कॉन्सिक्वेंस मेटिंग क्या होती है? ऑफकोर्स इसमें आपको कुछ बहुत अलग सा नहीं जानना है. नॉन कॉन्सिक्वेंस मेटिंग इज द मैरिज बिटवीन द इंडिविजुअल हु आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, ठीक है? जो क्लोजली रिलेटेड नहीं होते उनके बीच में जो मैरिजेस हो रही होती है, दैट इज बेसिकली नॉन कॉन्सिक्वेंस मेटिंग. इसके बारे में कुछ बहुत आपको डिटेल वैसे जानने की जरूरत नहीं है. द मेन पार्ट वॉज कॉन्सिक्वेंस, और इसको आपको नॉन कॉन्सिक्वेंस से डिफरेंशिएट करना पता होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोन एज जेनेटिक लोड. So basically genetic load होता क्या है? Let's try and understand with an example first, then we'll deep dive into the technicalities of it. Suppose there's a boy 1 and there's a boy 2, ठीक है? And this boy 1 is a very intelligent one having high IQ like similar to Einstein, and this boy 2 is a very average one, right? So मान लीजिए he always gets a D grade and he gets an A plus grade in every examination. So suppose both of them sit for an examination, so definitely it will happen कि ये वाला जो boy 1 है, he will top the exam and he will as usual not secure a very good marks. Probability तो यही है कि वो हमेशा से वैसा करता आ रहा है, तो he'll perform in the same way here as well. So this is a overview of the genetic load. इसके अंदर भी क्या होता है कि there are certain इंडिविजुअल्स, आप कह सकते हैं एक एवरेज इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर आप लेते हैं, और वो हमेशा से इन्फीरियर होंगे टू द वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल हु इज हैविंग द बेस्ट पॉसिबल फिटनेस, ठीक है? आप इसे किसी और दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. सपोज देयर इज अ स्पोर्ट्स पर्सन हु इज़ वेरी फिट एंड फाइन, और देयर इज अनदर स्पोर्ट्स पर्सन हु इज़ वेरी एवरेज लाइक in terms of body structure, in terms of stamina. तो जाहिर सी बात है द पर्सन हु इज लाइक स्ट्रॉन्गर, हैविंग स्ट्रॉन्गर फिटनेस विल परफॉर्म बेटर इन कंपेयर टू द वन हु इज लाइक काइंड ऑफ एन इन्फीरियर इन टर्म्स ऑफ स्टैमिना एंड अदर बॉडीली स्ट्रक्चर्स, राइट? सो ये वाला जो कंसेप्ट है, इट वॉज गिवन बाय हेल्डेन एंड मुलर.
तो इन्होंने ये बताया था कि देयर आर मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑन वेरियस जीन्स। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पहले देखे हैं इन विच द होमोजाइगस स्टेज, जैसे कि आप बात करते हैं ये वाले, दीज आर होमोजाइगस स्टेज, राइट। सो इन होमोजाइगस स्टेज में से बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजियस जीन्स भी होते हैं दैट मे कॉज सर्टन डिजीजेज, राइट। हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस का एग्जाम्पल देखा था, सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल देखा है, हंटिंगटन डिजीज का एग्जाम्पल देखा है। तो उसमें अल्टीमेटली क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है लाइक हैविंग दैट जीनोटाइप और उनके जो जीन्स होते हैं अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो दे अल्टीमेटली डाई बिफोर रिप्रोडक्शन और ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं बेसिकली, राइट। सो आपका जो जेनेटिक लोड है इट बेसिकली मेजर्स द नंबर ऑफ डिसएडवांटेजियस जीन इन पॉपुलेशन। ये एक पॉपुलेशन के अंदर जो डिसएडवांटेजियस जीन्स होते हैं उनको मेजर करता है, और ऑफ द डैमेज डन टू द पॉपुलेशन बाय सर्टेन जेनेटिक फैक्टर, and this disadvantageous genes reduces the fitness by mortality, morbidity, sterility in the heterozygote. Like हमने examples देखे थे, उस examples में हमने देखा था there are certain heterozygote who can be a carrier but may not be an infected one, right? और अगर ये आपके dominant alleles present हो, यानी कि dominant genes अगर present हो हेट्रोजाइगोट में और वो इन्फेक्टेड हो, मान लीजिए दिस इज द हेट्रोजाइगोट वन एंड दिस इज द डोमिनेंट वन विच इज हैविंग द इन्फेक्शन, तो इन दैट केस हो सकता है मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और स्टेरिलिटी हो जाए। और अगर होमोजाइगोट है, होमोजाइगोट का क्या मतलब है, दिस इज द होमोजाइगोट एंड इफ इट इज रेसेसिव, रेसेसिव होमोजाइगोट में हमने देखा था कि अगर रेसेसिव होमोजाइगोट होता है इन दैट केस द पर्सन विल बी द डिजीज्ड वन, राइट। अगर आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, यू विल बी बेटर एबल टू कॉम्प्रीहेंड ऑल दीज, राइट। तो जेनेटिक लोड बेसिकली यही मेजर करता है कि आपके कौन से जीन्स इन्फेक्टेड है और वो कौन से जीन्स प्रेजेंट है और क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द पर्सन विल बी हैविंग सो एंड सो लाइफस्टाइल, ठीक है। वो डिसएडवांटेजेस ईट उनको कितना नुकसान पहुंचा सकता है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। और यहाँ हम फिटनेस की क्या बात कर रहे हैं, इट्स मोस्टली रिलेटेड टू दी मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, इन सारी चीज़ों की, राइट। सो एक प्रॉपर अगर आपको डेफिनेशन मेंशन करनी हो तो व्हाट यू कैन राइट, सो यू कैन बेसिकली राइट द डिक्रीज इन द फिटनेस ऑफ एन एवरेज इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन relative to the fittest genotype due to the presence of the deleterious gene in the gene pool is known as the genetic load. And the difference between the average fitness of the population and the fitness of the best genotype is also referred to as Malthusian fitness. So again, अगर इस नाम से भी आपको पूछ लिया जाता है, because generally sometimes what happen, UPSC ask a very simple question but put on a very different name that is rarely used, although वो names तो applicable है लेकिन आपको हर जगह वो mention नहीं दिखेगा। So अगर आपसे Malthusian fitness के बारे में पूछा जाए तो they are talking about the fitness in terms of the genetic load only, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके कुछ formulas भी होते हैं, we'll see that formulas as well। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको जेनेटिक लोड कैलकुलेट करना हो तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज फिटनेस and then you can calculate the genetic load which is represented by the capital L, और इसको आप कैसे कर सकते हैं, it's 1 minus the average fitness that is here, और आपने average fitness पहले से calculate कर लिया है। तो let's try and understand with the help of an example। So suppose आपको एक जीन फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वो जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, P और Q दोनों की ही जीन फ्रीक्वेंसी है 0.5। सो P भी आपका 0.5 है, Q भी आपका 0.5 है, ठीक है। और जो रिलेटिव फिटनेस की वैल्यू है वो आपको मेंशन है। सो दीज आर द रिलेटिव फिटनेस की वैल्यू जो कि गिवन है। डोंट वरी अबाउट इट कि रिलेटिव फिटनेस वैल्यू कहाँ से आई, ये रिलेटिव फिटनेस वैल्यू आपको दी हुई है सपोज। देन आपको अब जेनेटिक लोड फाइंड आउट करना है, तो व्हाट वी विल डू सिंपली, अब सिंपली हम एक मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एज वी नो आपने HWL इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इट्स P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। सो अगर आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे मीन फिटनेस फाइंड आउट करने के लिए, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट्स 0.5 का स्क्वायर दैट विल बी 2.5 एंड व्हाट इज द रिलेटिव फिटनेस, इट्स 0.8। ये P स्क्वायर इज नथिंग बट द AA, राइट, दिस इज A और यहाँ पे ये है 2PQ को आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स कैपिटल A स्मॉलर a एंड दिस इज दिस, राइट। These are the representations, तो ये 0.25 into 0.8, then
in adding this to 0.25. 0.25 कैसे आया? क्योंकि आपने P और Q दोनों ही को मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, you will get 0.25. और P और Q दोनों ही क्या है? 0.5 और 0.5. That is how 0.25 into 2, ये वाला 2, ठीक है, into relative fitness क्या है? It's 1. So here you will write 1. And again ये Q square is 0.25 और relative fitness है आपकी 0.6. अगर आप इसको calculate करेंगे you will get this 0.85, which is what? Which is nothing but the mean fitness of the population, that is represented by this one. ठीक है, अब आपको genetic load calculate करना है. Simply you need to minus 1 minus whatever the mean that you have obtained, that is 0.85. तो आपका कितना आ गया? 0.15. तो what does that mean कि इस पॉपुलेशन पे, जो सर्टेन पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं जिसकी जीन फ्रीक्वेंसी इतनी है, जिसकी रिलेटिव फिटनेस इतनी है जीनोटाइप्स की, तो उस केस में जो 0.5 है, यानी कि जो 15% ऑफ द पॉपुलेशन है, दैट विल बी हैविंग द डिलेटेरियस एलील्स. दैट मीन्स कि इनको खतरा ज़्यादा है, दे आर लाइक काइंड ऑफ एन इन्फीरियर वन. तो इनके केस में आपको मोर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है. दैट इज़ वॉट बी टॉक्ड अबाउट इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक लोड, ये वाली चीज़, ठीक है. और इसको आप सेलेक्टिव डेथ भी कहते हैं. जो आपकी 15% आए ना यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सेलेक्टिव डेथ, यानी कि 15% ऑफ द पॉपुलेशन के जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो, उनको मरने के चांसेस हैं, मतलब दे माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव, राइट. Then what could be the causes of genetic load? So see, the first causes can be the mutational load. So this is simply nothing. यहाँ पे जो भी चीज़ लिखाई गई है मैं आपको summarize करके बता देती हूँ. So it's basically nothing. It's about the effect of the mutations, right? जो आपके mutations होते हैं उनका जो भी impact आता है, and whatever the disadvantage that mutation can cause, that is referred to as the mutational load. Because कई बार ऐसा भी होता है, because of certain mutation, the fitness of a person or the fitness of a population get compromised, right? So that is about the mutational load. Then the second one is the segregational load. अब ये segregational load क्या होता है? See, basically segregational load के अंदर आप बात करते हैं जो segregation होता है leading to the different forms of genotypes, of which some are less fit. Because हमने ये चीज़ें बार बार देखी हैं that there are certain genotypes in certain conditions, they are less fit than the other. चाहे हम वो मलेरिया का एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में बात करें, या हम सिकल सेल एनीमिया के केस की बात करें, उसमें हमने देखा है कि देयर आर सम और द अदर विच इज़ हैविंग द हेटेरोजाइगोट एडवांटेज, राइट. सो वही वाली चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई कि हेटेरोजाइगोट एडवांटेज के केस में कई बार ऐसा होता है कि आपके जो सर्टन जीनोटाइप्स होते हैं दे आर फेवर्ड देन द अदर. सो दिस में ऑल्सो लीड टू द जेनेटिक लोड. एंड द थर्ड वन इज इनब्रीडिंग. अब इनब्रीडिंग से कैसे जेनेटिक लोड बढ़ सकता है? सो बेसिकली इनब्रीडिंग, इफ inbreeding increases the rate of homozygosity, and inbreeding depression will be observed when the offspring receive two recessive and deleterious allele resulting in a lower fitness. अब आप बोलेंगे what is this inbreeding depression? So again inbreeding depression को हम end में पढ़ेंगे जब हम genetic effects के बारे में बात करेंगे. अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि inbreeding can also bring some changes in the genetic load. And when you finish this lecture again you can come back to this portion, तो आपको समझ में आ जाएगी inbreeding depression हम क्या बात कर रहे हैं, right? And the next is your migration as well. Migration से भी genetic load होता है, and that is also referred as the migrational load. So what is this? So it basically results when an organism which is non-adaptive to a particular environment comes in contact with an individual adapted to that particular environment, and the offspring produced as a result of such mating are not fit as they would have been if both the parents were adapted to the same environment. So there could be like various cases. हो सकता है that the person who's from a very cold environment and another person is from the equatorial region, वहाँ के जो adaptations है वो भी काफ़ी अलग अलग होंगे. ये आगे चल के आप जब adaptations के बारे में पढ़ेंगे you will find it out कि आपके body में भी बहुत सारे ऐसे changes आते हैं that comes along with the environment that you are living in, right? So हो सकता है there is a possibility that the person who's having two different genes who are adapted to two different environment, they may not be able to cope up with certain environment. हो सकता है कि एक ऑफस्प्रिंग है, उसके माता पिता दोनों अलग अलग दो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को बिलोंग करते हैं, और वो जो पर्टिकुलर बच्चा है ही इज़ लिविंग इन सर्टन एनी ऑफ दीज टू एनवायरनमेंट. तो हो सकता है वो उसके पास एडवांटेज ना हो टू सर्वाइव, इनेबलिंग हिम कि वो अपने माता पिता से उसने जो भी जीन्स अडेप्ट किए हैं, बिकॉज वी कांट से ना कि कौन से एलील आप कौन से पेरेंट्स से लेंगे, इट्स कम्प्लीटली रैंडम, राइट. सो दैट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द migrational load. You can of 9.3, that is genetic effect of consanguineous and cousin mating.
सो बेसिकली कंसिक्वेनिटी हमने देख लिया है, ये बोथ सोशल और जेनेटिक कंसेप्ट तो है ही है, बिकॉज सोशली भी इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं एंड जेनेटिकली भी इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। और जो डिग्री है ऑफ रिलेटेडनेस between the two individual define the proportion of the genes shared between them. Like more closer the relatives are, more sharing of the gene, right? So that is what is being all about in the consanguinity. Then जो आपके consanguineous couples होते हैं, they are at increased risk of autosomal recessive disorder. अब ये autosomal recessive disorders क्या होता है? We already discussed about all these things in details, so that is why I'm not recalling those concepts here. Otherwise already ये lecture काफ़ी लंबा हो जाएगा, then अगर हम वो भी include करें तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. Just for an example, suppose these parents are like kind of an related, they are consanguineous, ठीक है, and they have this type of genes. So in this, ये वाला जो आपका smaller r है, that is the recessive one, is infected. So अब इस केस में क्या होगा, जब आप इसको एक पनेट स्क्वायर में भी बना के देखेंगे, यू विल गेट द सेम थिंग कि ये जो चाइल्ड्स हैं इनमें से एक जो चाइल्ड होगा विल बी द नॉर्मल. दैट मीन्स देयर इज 25% ऑफ द चांस दैट द चाइल्ड विल बी नॉर्मल एंड देयर इज 50% ऑफ द चांस वेयर द चाइल्ड विल बी द कैरियर. एंड हाउ दिस 25 and 50%, रिमेंबर हमने ये कई बार पहले भी बात करी है, बिकॉज दिस इज वन सच कॉम्बिनेशन तो 1/4, बिकॉज 4 सच आपको पॉसिबिलिटीज है. सो 1/4 इज इक्वल्स टू 25%. सिमिलरली यहाँ पे 50% वैसे ही आएगा. And then ये वाला जो child है which is getting the smaller r and smaller r, that is what the recessive one. And for the recessive one we know कि आपके ये जो दोनों हैं it should be infected, then only the person will be having the infection. अगर इनको कुछ एक भी मिलता है, like in this case the combination is this one, that is why they are the carrier, not the diseased one. But इस case में child diseased है because it is the autosomal recessive one, right? सो ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई है एंड दैट इज़ द सेम एप्लीकेबल आउट हियर एज वेल. अब कुछ इनहेरिटेड डिजीजेस होती हैं. बेसिकली ये इनहेरिटेड डिजीजेस ही रिलेटेड होंगी आपके इन कंसिक्वेंस मेटिंग से. इनहेरिटेड डिजीजेस क्या क्या हो सकती हैं? तो जैसे कि मेंडल ने 2 तरीके के पैटर्न बताए थे ऑफ द इनहेरिटेंस of the trait, which explained as being due to some allele being dominant while the other being recessive, right? And it was explained in the law of inheritance. Basically it's talking about nothing but the capital R and smaller r, जो कि आप किसी भी टर्म में बात कर सकते हैं. This is the dominant one, this is the recessive one, depending upon कि आप कौन से genes को acquire कर रहे हैं और उस genes में infection है या नहीं, that is the infected genes or not. Depending upon that the offspring will inherit certain characteristics, right? और ये जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं वह सीन टू ओनली बी एक्यूरेट फॉर द ऑटोसोम्स एंड नॉट द जीन्स कैरीड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स. ये भी हमने पहले बात की हुई है कि जितने भी आपके ऑटोसोमल डिजीजेज होती हैं हमने उनके बारे में बात की है. अदरवाइज देयर आर डिजीजेस अदर देन दिस द ऑटोसोमल डिजीज जो कि आपके सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स में हो सकते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंसेस भी होते हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको एक्स लिंक्ड आपको तो डिजीजेस पढ़नी है, वो हमने पहले भी कवर किया हुआ है और आने वाले लेक्चर्स में भी आपके कुछ कवर करेंगे हम. लेकिन जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हैं उनके बारे में उतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है फॉर दी सिलेबस पर्सपेक्टिव. ऑल्दो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली नो दैट. और वो क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं, इफ यू कैन सी ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर इन सारी डिजीजेस हो सकती है, डोमिनेंट के अंदर ये सारी डिजीजेस हो सकती हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की अगर आप बात करें तो ये सारे हो सकते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकते हैं. सो बेसिकली जब आप एक्स लिंक की बात करते हैं तो दे आर नथिंग बट दी सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स. उसी तरह से इम्प्रिंटिंग, माइटोकॉन्ड्रियल, मल्टीफैक्टोरियल, ये सारे डिजीजेस हो सकते हैं. मल्टीफैक्टोरियल के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है. बट बेसिकली जो आपके कंसिक्वेंस मेटिंग से होते हैं दे आर मोस्टली दीज वंस जो ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर आपके आते हैं, राइट? Things will be much more clear. Suppose there's a generation 1, this is generation 2, 3 and 4. So in this generation 1 there's a grandparent and in this grandparent मान लीजिए he is having this particular genotypes. So इनके अंदर ये जो smaller आ रहा है that is the infected one. But since आपको पता है कि for the recessive disorder आपके both the दोनों recessive traits होने चाहिए, then only the person will show the disease. Otherwise the person will be what? Only a carrier. So ये जो दादाजी थे he married some female which is a normal one. So ultimately what will happen? Their children will be the carrier only, not the diseased one. So ये भी carrier थे, इन्होंने भी normal मतलब इनके भी जो partners थे they were normal, right? So what will happen ultimately? They produce children which are again the carrier one. अब क्या होता है कि there is a cousin mating, यानी कि
जो आपकी थर्ड जनरेशन है उसमें जो फर्स्ट कज़न है दे गॉट मैरिड एंड दीज बोथ द फर्स्ट कज़न आर द कैरियर. अब जो कि both the first cousin are the carrier, ultimately their children will be the affected one, right? So this is the basic, you can understand the flow of the pedigree that can happen if you are having a common ancestor and some harmful recessive traits. Now what is degree of inbreeding? So basically degree of inbreeding आप measure करते हो by the coefficient of inbreeding. So don't get confused in between these two. These are जैसे आप बात करते हैं ना like velocity, या आप बात करते हो in terms of length को you can measure via meter. So similarly degree of inbreeding को you can measure via coefficient of inbreeding. So what is this coefficient of inbreeding basically? तो इसके अंदर जो individual होते हैं like the probability is measured in which the two allele at any locus in an individual are identical by descent from the common ancestor of the two parents. यानी कि here in this case like they have the common ancestor, right? ये वाला generation और ये वाला generation से this third generation have a common ancestor. So basically what is the probability of the same allele is being measured using what? The coefficient of inbreeding. और वही if you remember हमने inbreeding depression के बारे में बात करी थी थोड़ी देर पहले. So what is this inbreeding depression? So basically this is the phenomenon by which the number of individuals affected by the autosomal recessive disorder increases due to inbreeding is referred to as inbreeding depression. Suppose in this case there would have happened कि आने वाले generations में भी अभी तो like this is a smaller pedigree. Suppose in this case they might be having like more number of children, and ultimately in the fourth or the fifth generation there will be continuous matings between the cousin, then the chances of getting the autosomal recessive diseases would have increased, right? और जैसे जैसे ये chances increase होते जाते हैं that is what we refer to as the inbreeding depression, right? और हमने ये पहले भी बात करी है कि जितनी आपकी जो f की value है it is inversely proportional to what? The total population, right? यानी कि f की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी population उतनी छोटी होगी. And high value of f are found in small population whose members marry one another over many generations, and such groups are also known as isolates. Again this is one of the sub part of the question, मतलब सब part of the question के form में ये निकल के आ सकता है like what are isolates. Then you need to remember कि isolates क्या होते हैं and how you are going to write it. अब देख लेते हैं like how do you calculate the inbreeding coefficient basically. So inbreeding coefficient as we already saw ये represent किया जाता है by the capital F, smaller f, whatever you can say, and it is the measure of the extent of genetic similarity among the inbreed individual as a result of inbreeding. Similarly जो ये वाली हम बात करें that's the same thing, right? और ये concept दिया किसने था? It was given by the Sewall Wright, and he defined inbreeding coefficient as the correlation between the uniting gametes. However, such correlation can also occur because of other types of mating. Like assortative matings में भी आपको inbreeding coefficients देखने को मिलेगा. But here since we are more concerned about the consanguineous, हम उसी के ऊपर फोकस करके देखेंगे, ठीक है? और अगर आपको डेफिनेशन लिखती हूँ तो डेफिनेटली यू कैन राइट द डेफिनेशन यूज्ड बाय द सीवॉल राइट एंड ऑल. और मैलिकॉट ही वाज अनदर साइंटिस्ट, इन्होंने भी डिफाइन किया था इनब्रीडिंग कोफिशिएंट को बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट द होमोलोगस जीन्स ऑफ यूनाइटिंग गेमेट्स आर आइडेंटिकल बाय डिसेंट. तो बेसिकली ये घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द वेरियस सेंटेंसेस, राइट? So overall what you can conclude that जो f है और the coefficient inbreeding coefficient है, it's the probability of autozygosity. अब ये autozygosity क्या होती है? It's nothing but the similarity in the zygotes or similarity in the genotypes, right? और inbreeding coefficient is equals to coefficient of consanguinity. तो यानी कि आपको coefficient of consanguinity दिया जाए या inbreeding coefficient दिया जाए, both are the same. इसमें आप confuse नहीं करेंगे, right? और जो inbreed individuals होते हैं has genes that are likely to be same with the ancestors, and the inbreeding coefficients can be calculated or estimated by different methods for the pedigree and population and for a variety of data as well. So since there can be like various methods to calculate, we'll see which one is the simpler one, ठीक है? और उसके हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे that how you can calculate. The calculation is quite simple. So to calculate the coefficient of inbreeding, that is f, you need to do what? You need to divide 1 by 2 to the power n plus 1. And what is this n?
N basically refers to the various generations. So here in this case, अगर आपको देखना है इस pedigree के अंदर, if you have to calculate the inbreeding coefficient of this one, so what you will do, you will divide 1 by 2 to the power, generations कितने हैं, 1, 2 and 3. There are 3 generations, so that means 3 plus 1, जो कि formula के अंदर आपका 1 है, तो ये क्या हो गया, 1 by 2 to the power 4. So that will be 1 by 16. So that is what the coefficient of inbreeding. So similarly, जैसे जैसे आपके generations आगे बढ़ते जाएंगे, आप coefficient of inbreeding calculate करना चाहे तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं. See here, यहाँ पे भी आपके अगर coefficient of inbreeding आपको टेस्ट करने हैं for parent to the offspring. So suppose there are parent, ठीक है, and their offspring. इनके offspring मान लीजिए this is the offspring, ये generation 1 है, आपको ऑफस्प्रिंग का कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको इनका इनब्रीडिंग कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है. तो 1 by 2 टू द पावर कितने जनरेशन है, 1 plus 1, यानी कि n के जगह पे 1 होगा एंड यू विल हैव 1. सो दिस इज 1 by 2 टू द पावर 2. सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 1 by 4. दैट इज व्हाट इज हियर, राइट. उसी तरह अगर आपको ब्रदर सिस्टर की कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग कैलकुलेट करनी है, यू कैन कैलकुलेट हाफ सिबलिंग्स. तो सिमिलरली आप अलग अलग जनरेशन्स में पुट करते जाएंगे वैल्यू, यू विल गेट ऑल दीज, राइट. एंड अब ये प्रपोर्शन ऑफ शेयर्ड एलील्स क्या है, ये हम आगे देखेंगे. इस प्रपोर्शन ऑफ शेयर्ड एलील को कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है, रिलेटेडनेस भी कहते हैं. हम वो देख लेते हैं आगे उससे कैलकुलेट कैसे करते हैं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, तो इट रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी दैट द टू रिलेटेड इंडिविजुअल हैव इनहेरिटेड a particular allele of a single locus or a gene from their common ancestor, and such allele is referred to as the IBD or the identical by descent. तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट्स बेसिकली नथिंग बट 1 by 2 टू द पावर n. जैसे हमने कोफिशिएंट के केस में n के साथ +1 कर दिया था, आपको रिलेटेडनेस के केस में +1 नहीं करना है. तो हम वापस से अगर इस एग्जाम्पल के अंदर जाते हैं, यू हैव टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग. तो उसके केस में क्या हो जाएगा, 1 by 2 टू द पावर n. n क्या है यहाँ पे, अलग अलग जनरेशन, तो इसके केस में जनरेशन क्या था, 1. सो दैट इज वाई 1 by 2 टू द पावर n, दैट इज 1 ओनली, दैट विल गिव यू 1 by 2. सिमिलरली आप अलग अलग टाइप्स ऑफ मेटिंग के अंदर ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. देन सिमिलरली कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मेंशन है, इफ़ यू वांटेड टू सी, आप इन एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं. हमने वही वाली चीज़ इस एग्जाम्पल के अंदर भी देख लिया, तो देयर इज नथिंग लाइक न्यू इनटू इट, ठीक है. आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको अलग अलग रिलेटेडनेस कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे. देन अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं ऑफ द इनब्रीडिंग, एक एक करके हम ये कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं. ऑल्दो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया है कि जेनेटिक डिफरेंसेस होने की, सॉरी, देयर इज अ इंक्रीज चांसेस ऑफ रेसेसिव डिसऑर्डर डिजीजेस, and all those things can be found in case of inbreeding. So one of the important aspect of inbreeding is that it increases the chance of some recessive allele with the deleterious effects to get expressed in the inbreed. Of course, that is what we already know about it. And theoretically, inbreeding in a population in general increases the number of homozygotes at an autosomal locus. And in case of recessive Mendelian disease, this can lead to an increased risk of genetic diseases among the inbreeded children. जो हम रेसेसिव डिसऑर्डर की बात करते हैं, ये वही बात कर रहा है, राइट. सो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है, आप चाहे तो कॉन्सिक्वेंसेस एक बार देख सकते हैं. देन इन अनदर वैल्यू एडिशन, लेट्स ब्रीफली टॉक अबाउट द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. हमने पहले ही देख लिया इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है. इसके अंदर आपकी जो बायोलॉजिकल फिटनेस है, इट गेट रिड्यूस बेसिकली ड्यू टू द इंक्रीज इन द जेनेटिक लोड, राइट. सो इस टाइप के इनब्रीडिंग डिप्रेशन मोस्टली आर द रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन बॉटलनेक. सो पॉपुलेशन बॉटलनेक में क्या होता है, हमने ऑलरेडी जेनेटिक ड्रिफ्ट में पॉपुलेशन बॉटलनेक के बारे में पढ़ा हुआ है, इन विच द ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ ऐसे बॉटलनेकिंग इवेंट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट सम सर्टेन पॉपुलेशन गेट आइसोलेटेड, और इस आइसोलेटेड पॉपुलेशन की आपस में इनब्रीडिंग होती है, एंड दिस इज़ अ स्मॉलर पॉपुलेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नो कि अगर जहाँ पॉपुलेशन स्मॉलर होगी, आपके जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट्स है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, और इनब्रीडिंग कोफिशिएंट बड़ा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आपको वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा. दैट इज़ व्हाट द समरी ऑफ द इनब्रीडिंग डिप्रेशंस. ऑफ कोर्स विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, सो दैट यू आर बेटर एबल टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दिस. बट आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए अबाउट द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो जनरली द हायर द जेनेटिक वेरिएशंस in the gene pool within a breeding population, the less likely it is to suffer from the inbreeding depression. Of course, genetic variations आपके जितने ज़्यादा होंगे, उतने ही ज़्यादा आपको कम इनब्रीडिंग डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे. ऑल्दो आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशंस
बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एन मेटिंग पैटर्न दैट दे आर फॉलोइंग. अगर कंसिक्वेंस मेटिंग्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी तो देयर यू विल फाइंड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन टू बी ऑन द हायर साइड. वहीं अगर आप नॉन कॉन्सिक्वेंस के केस में बात करेंगे तो देयर विल बी द लेसर इनब्रीडिंग डिप्रेशन. देन अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे, सो देयर वाज अ पॉपुलेशन ऑफ 40 एडर्स जिसको दे आर बेसिकली स्नेक, इसको साइंटिफिकली आप वाइपेरा बेरस भी कहते हैं. वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इनके साइंटिफिक नेम, बट वी नीड टू नो कि देयर वर 40 स्नेक पॉपुलेशन जो कि जिन्होंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन जिनमें एक्सपीरियंस किया गया व्हेन फार्मिंग एक्टिविटीज इन द स्वीडन आइसोलेटेड देम फ्रॉम द अदर एडर पॉपुलेशन. सिमिलरली ये बॉटलनेक इवेंट की तरह ही देख सकते हैं. देयर वर लाइक ग्रुप ऑफ और द पॉपुलेशन ऑफ स्नेक एंड बिकॉज ऑफ सम bottlenecking event. अब ये bottlenecking event कुछ भी हो सकते हैं. Here in this case it was the farming activities of the Sweden, जिसकी वजह से कुछ जो adder populations थे वो original population से separate हो गए. यहाँ पे स्वीडन की फार्मिंग एक्टिविटी हुई और जिसकी वजह से certain populations got separated, right? देन आगे क्या होता है हमको देख लेते हैं. सो जो हायर प्रपोर्शन ऑफ स्टिल बॉर्न्स थे एंड डिफॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग्स वेयर बोर्न इन द आइसोलेटेड पॉपुलेशन देन इन द लार्जर पॉपुलेशन. तो ऑफकोर्स ये हमें पता ही है कि अगर ये एडर पॉपुलेशन जो कि सेपरेट हो गए इनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ गया होगा. मतलब हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ वाई वी नो, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये स्टडी की गई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. ये जो पॉपुलेशन सेपरेट हो गया था दे वर एक्सपीरियंसिंग स्टिल बॉर्न और डिफॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग. जब रिसर्चर्स ने पता लगाया लाइक व्हाई दिस इज़ अ केस और उन्होंने कुछ और भी चीज़ें की टू फाइंड आउट कि क्या हो सकता है, तो इन्होंने कुछ एडर पॉपुलेशंस इंट्रोड्यूस किए. बेसिकली यू कैन से आउट ब्रीडिंग. ठीक है, when the researchers introduces adder from the other population, an example of outbreeding, the isolated population recovered and produced a higher proportion of viable offspring. So basically ये जो isolated population थी जिसके अंदर आपके stillborn और deformed offsprings आ रहे थे उसके अंदर कुछ outbreeding करवाई गई, यानी कि और भी दूसरे जगह से एडर्स को लाया गया और उनके साथ ब्रीडिंग कराई गई. तो पाया गया कि जो रिकवरी थी, यानी कि अब के केस में आपको कम स्टिल बॉर्न्स और कम डिफॉर्म्ड एडर्स देखने को मिल रहे थे. एंड दिस एक्सप्लेनेशन फॉर इनब्रीडिंग डिप्रेशंस लाइज इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन. ओवर टाइम नेचुरल सिलेक्शन वीड deleterious allele out of the population, and when the dominant deleterious alleles are expressed, they lower the carrier fitness and fewer copes wind up in the next generation. But the recessive deleterious alleles are hidden from the natural selection by their dominant non-deleterious counterpart. So what happened in case, आप ज़्यादातर देखते हैं, हमने बात की हुई है कि recessive autosomal diseases ही पास ऑन होते हैं और वही आपको ज़्यादातर कंसिक्वेंस मीटिंग्स के अंदर देखने को मिलेंगे. सो वाई दिस इज सो, बिकॉज जनरली होता क्या है कि जो आपके रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं और रेसेसिव ट्रेट्स होते हैं कैरियर के फॉर्म में दे जस्ट गॉट पास ऑन. वो नेचुरल सिलेक्शन को स्केप कर लेते हैं और वो पास ऑन होते रहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर. एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब दो पर्टिकुलर पर्सन हु आर शेयरिंग द सेम टाइप ऑफ एन रेसेसिव एलील एंड दे कम्स टुगेदर एंड मेट, then they eventually result into an offspring that is the infected one. I hope you are understanding the point. अगर dominant होता तो बहुत easily पता चल जाता, लेकिन recessive है तो वो कहीं ना कहीं छुपा रहता है और वो कैरियर के फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, राइट. लेकिन जब दो वैसे कैरियर मिल बैठते हैं तो आप समझ ही सकते हैं क्या हो गया, ठीक है. And an individual carrying a single recessive deleterious allele will be healthy and can easily pass the deleterious allele to the next generation. That is what I just told you. And when the population is large, this is generally not a problem. The population may carry many recessive deleterious allele, but they are rarely expressed. क्योंकि अब यहाँ पे हम ये भी बात कर रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन लार्ज होगी दैट मीन्स आपकी जो मेटिंग के चांसेस होंगे वो हो सकता है इट्स नॉट बीइंग अमंग द कंसिक्वेंस ओनली बट मे बी फ्रॉम द अदर पार्टनर्स एज वेल. तो उस केस में ये चीज़ें थोड़ी सी जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ डेलेटीरियस एलील पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकम्स लेस, बिकॉज हो सकता है कि जो दूसरे पॉपुलेशन हो दे आर हैविंग लेस जेनेटिक लोड और उस केस में जो आपके डोमिनेंट जीन्स होते हैं और द फिटर वन you can say they pass on to the next generation. When however the population becomes small, close relatives end up mating with one another and those relatives likely to carry the same recessive deleterious allele pass on to the offspring. वही सारी चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. And when the relative mates, the offspring may inherit two copies of the same recessive deleterious allele and suffer the consequences of expressing the deleterious allele. In the case of Swedish adder,
that mean stillborn offspring with deformities. So this is a very good example, or you may say the case study to present what are the genetic effect of consanguineous mating. ठीक है, so I hope आप इसको properly note करेंगे and you will be able to write this in the examination, and this is what you can represent in the flow chart as well, कि किस तरह से इनब्रीडिंग हुई और आउटब्रीडिंग के केस में क्या रिजल्ट निकल के आया, इनब्रीडिंग के केस में क्या रिजल्ट निकल के आया. इनब्रीडिंग के केस में आप देखेंगे दे वर बोथ द रिसेसिव ट्रेट्स, राइट, दैट इज व्हाई दिस वाज द इन्फेक्टेड वन. किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पे केस में स्टिल बॉर्न और डिफॉर्मिटीज़ का था. जब आउटब्रीडिंग कराई गई, आउटब्रीडिंग के केस में यहाँ से तो एक रेसेसिव आया ही, but the next parent pass on to the dominant trait as well. That is why the recessive one became the carrier. ये carrier हो गया होगा, but it may not be the affected one, right? So this is how you can represent it. Now अब काउंसलिंग और कॉन्सिग्वेनियस मीटिंग्स का हम थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं. अगेन दिस इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द सिलेबस बट कैन बी इन्फर्ड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन कॉन्सिग्वेनियस मीटिंग्स. सो बेसिकली आपने ऑब्जर्व किया होगा, इफ़ यू आर लाइक वेल अवेयर विद द सोसाइटीज़ व्हाट इज गोइंग अराउंड, आज के केस में जेनेटिक काउंसलिंग का बहुत प्रचलन है. लाइक पीपल गो फॉर जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर कंसीविंग द चाइल्ड. और ये ज़रूरी भी इसलिए है बिकॉज यू कैन बी एबल टू नो व्हाट आर द traits that you are going to pass on to your child. So in case if there is a certain kind of an abnormality with you and your partner, you will be better able to plan, right? So that is why these counseling becomes very important, that too with the consanguineous matings, because हमें पता है कि consanguineous matings के अंदर आपके जो recessive traits के पास ऑन के चांसेस होते हैं और recessive traits जो कि deleterious होते हैं और harmful होते हैं, अगर उनके चांसेस पास ऑन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो your offspring might get infected. So आज की डेट में when the people are kind of well aware, they generally go for this because consanguineous mating हमने देखी कहीं ना कहीं आपके social cultural factor से भी related है. तो बहुत सारे जो ऐसे countries हैं, like Middle East के countries हो गए या आपके Central Asian countries हो गए, they do practice such a kind of consanguineous matings, but they also go and prefer the counseling before conceiving, right? So to avoid any disastrous effects. तो ये आप एक अलग तरीके से अगर पूछ लिया जाता है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स में भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. नथिंग गोज बेस्ड व्हाट एवर यू आर स्टडिंग, राइट? सो वही सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई हैं कि सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सारे आपके इन्हीं कंट्रीज़ में से आ जाते हैं जहाँ पे कॉन्सिक्वेंस मीटिंग्स फॉलो की जाती हैं. और इनके पॉपुलेशन में थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जो कि बेसिकली आपके रेसेसिव डिसऑर्डर्स ही हैं, ये देखने को काफ़ी मिलते हैं. दैट इज़ वाई दीज जेनेटिक काउंसलिंग प्रोग्राम्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके कुछ स्टेजेस भी होते हैं, लाइक हाउ दीज काउंसलिंग्स आर बीइंग डन. अगेन दिस इज नॉट दैट यू शुड रिमेंबर, but it is just for you to understand like how these kinds of an counseling basically works, because generally we as a human being also can get something out of it, right? because knowledge कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, और आप कभी पढ़ेंगे तो शायद आपके किसी रिलेटिव को या इवन लाइक फॉर यू इट्स बेटर टू नो. तो बेसिकली इस काउंसलिंग के अंदर यू फर्स्ट कंस्ट्रक्ट अ पेडिग्री. सो इस पेडिग्री में आप क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार. सो इस पेडिग्री कंस्ट्रक्शन में अगर मान लीजिए कि कोई भी जेनेटिक डिजीज़ नहीं है फैमिली में, सो यू कैटेगराइज इट इन वन हेडर. और अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ है फैमिली में तो हम उसको कैसे देखेंगे. सो बेसिकली आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. ईदर केस लाइक एनी ऑफ द कपल विल फॉल इनटू एनी ऑफ दीज केस. तो अगर जेनेटिक डिजीज़ नहीं है फैमिली में तो क्या होगा, तो देयर विल बी सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट अ काउंसलर विल आस्क, और डिपेंडिंग अपॉन दैट सर्टेन क्वेश्चन he can or she can, the counselor can predict the probability of the genetic disease in the family. और अगर कोई भी जेनेटिक डिजीज़ नहीं है फैमिली में तो कुछ टेस्टिंग्स कराए जा सकते हैं और उस टेस्टिंग के रिजल्ट के आधार पे दे कैन बेसिकली एडवाइस, राइट? और अगर फैमिली में जेनेटिक डिजीज़ है तो उस केस में क्या होगा, डायग्नोसिस अगर नहीं पता है या डायग्नोसिस कंडीशंस पता है. अगर डायग्नोसिस कंडीशंस नहीं पता है तो फिर अगेन उनको रेफ़र कर दिया जा सकता है स्पेशलिस्ट के पास. और अगर डायग्नोस्टिक कंडीशंस पता है देन भी अगर आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, राइट? और उन की काउंसलिंग की जाती है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आता है उसी बेसिस पे आप रिस्क फैक्टर डिसाइड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड लाइक वेदर यू वांटेड टू go for conceiving a child or not. So basically this is just an outline. Again you need not to remember it thoroughly. Then conclusion में आप क्या लिख सकते हैं. So conclusion में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं that consanguinity is like something that is deeply rooted in the societal trend, but इसके लिए क्या क्या चीज़ें आज के डेट में प्रेजेंट कंटेक्स्ट में चेंजेस आए हैं
वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज वन थिंग यू नीड टू बी वेरी अवेयर वाइल राइटिंग द कंक्लूजन फॉर सच अ थिंग विच आर वेरी डायनेमिक, बिकॉज कॉन्सिक्वेंस मीटिंग्स और इसका जेनेटिक इफेक्ट प्रेजेंट डे में क्या है, पहले क्या था, इट्स लाइक ह्यूज डिफरेंस। पहले के केसेस में जेनेटिक काउंसलिंग्स या फिर इस टाइप के जेनेटिक अवेयरनेस नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पे जो आपका कंक्लूजन होता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सोसाइटी वुड हैव बीन डिफरेंट। बट हियर इन प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट आप लिख सकते हैं कंक्लूजन के अंदर कि चूंकि जेनेटिक काउंसलिंग कुछ सोसाइटीज़ में प्रिवेलेंट है, बट ड्यू टू राइजिंग पब्लिक अवेयरनेस आज के डेट में लोग इन डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं, और काफ़ी सारे इसके अलग अलग मेथड्स भी हैं टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज डिसऑर्डर्स एज वेल, वो भी फॉलो किए जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा मेंशन कर सकते हैं, लाइक एंडिंग इट ऑन अ काइंड ऑफ इन पॉजिटिव नोट। आप पूरी तरह से कॉन्सिक्वेंस मीटिंग को नकार नहीं सकते, बिकॉज यू नो लाइक अ गुड नंबर ऑफ पॉपुलेशन फॉलो सर्टन प्रैक्टिसेस, राइट। सो आप एक बैलेंस्ड अप्रोच करके कंक्लूजन लिखेंगे। सो दिस इज लाइक द कंक्लूजन दैट यू कैन डेफिनेटली यूज़, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको, सो यू कैन यूटिलाइज वॉट एवर यू वॉन्टेड फ्रॉम हियर। नाउ अब हम एंड में केस स्टडीज़ देख लेते हैं। सो केस स्टडीज़ ये बेसिकली आपके रॉयल से ही रिलेटेड है। अगेन ये केस स्टडीज स्पेसिफिकली तो कहीं आपको पूछी नहीं जाएगी, यू हैव टू यूज़ इट वेदर यू आर व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर। तो इसके अंदर 3 हम केसेस देखेंगे। सो द फर्स्ट केस वॉज ऑफ द इजिप्शियन फेरो। इजिप्शियन फेरो के केस में यू कैन सी, तो दिस इज बेसिकली द ममी, और ये वाला जो फेस है इनका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द ममी का जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर। सो एज यू मे सी, जो आपको इनका फेशियल स्ट्रक्चर दिखेगा, यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ एन abnormality, right? So why this kind of an abnormality? Because आपको पता होगा कि जो Egyptian pharaohs थे, they were following some kind of an consanguineous mating, right? और consanguineous mating इनके केस में like it was between the brother and sisters as well. So because of that, this particular pharaoh, who is known as Tutankhamun, like if I'm pronouncing it right. So he was basically the one who was infected by the genetic disorder. तो इनके केस में क्या हुआ था, दिस फेरोहा becoming a world celebrity because nobody robbed his tomb, and the treasure and the curse surrounding his afterlife remnant captured our imagination. However, Tutinama suffered from the bodily deformities that were caused by the intermarriage. His parents were the brother and sister. So basically you can see जो इनकी ये जो facial structure थी, that was like kind of an not some diversion from the normal human being. तो ये इसलिए हुआ था because of the intermarriage, जो कि brother और sister के बीच में हुआ था. He was the offspring of that brother and sister. और इनके साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे. ही कुड बैरली वॉक, इनको चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी, और इनके लेफ्ट फुट में डेड टिश्यूज थे, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू वॉक, राइट. और बाकी बिकॉज ऑफकोर्स उस टाइम पे जेनेटिक इतनी अवेलेबल नहीं थी जिसकी वजह से आप बताया जा सके. आफ्टर द ममी हैज़ बीन डिस्कवर्ड, उसके ऊपर काफ़ी सारे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और सिटी स्कैनिंग वगैरह किए गए. देन द साइंटिस्ट केम टू नो कि इस तरीके से क्यों हुआ, एंड ही इवेंचुअली डाइड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 18. बिकॉज हमें ये भी पता है जो जनरली इस टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं लोग, दे आर नॉट बीइंग एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो ही इवेंचुअली डाइड एट 18. सिमिलरली आपके जो एक स्पेनिश रॉयल डायनास्टी का भी एग्जाम्पल है ऑफ द इन ब्रीडिंग. In that case also he was having a very peculiar face structure, as you may see. So इनका face structure भी काफ़ी अजीब था in terms of you can say the normal human being. और इनके केस में भी वही प्रॉब्लम थी, द inbreeding between the royal families. Royal families में भी पहले ऐसा काफ़ी होता था when they were being married to the close relatives just to maintain the pure royal blood. So इनका एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं. He also eventually died at young age, ठीक है. And this Hassenberg were infamous for the Hassenberg jaw, a medical condition which where the lower jaw protrude forward to such an extent that is significantly larger than the upper jaw, and the protruded jaw makes it difficult to close the mouth. So इनका फेस कुछ इस तरह से था, although this is a painting which is drawn in a better way, बट ये अपना मुंह भी अच्छी तरीके से बंद नहीं कर पाते थे. एंड हिज ओन वाइफ वॉज काइंड ऑफ एन अफ्रेड टू हिम, दैट वॉज बीइंग टोल्ड. तो इतने सारे आपको डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट इंक्लूडेड सो दैट यू बेटर एबल टू मेंटेन अ काइंड ऑफ एन फ्लो इनटू इट. बट हाँ, आपको इनके कुछ नाम पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स लिखने के लिए. दैट वुड बी वेल एंड गुड. देन आपके रशियन एम्पायर के एक जो हायर थे, ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम हेमोफीलिया. रशियन एम्पायर के केस में भी वही केस था, that there were kind of an inbreeding consanguineous matings थी, जिसके वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर था, जिसके अंदर हेमोफीलिया डिजीज़ थी. जो वहाँ के नेक्स्ट हायर थे,
he was infected by that. But eventually आप जब Russian Empire का पूरा history पढ़ेंगे, you will get to know that this person or this child eventually died very young because he was assassinated. But even though बोला ऐसा जाता है कि अगर उनको assassination नहीं भी किया जाता, he would have died eventually, क्योंकि इनको हेमोफेलिया था and that was incurable at the point of time. ठीक है, इवन आज के डेट में भी it's like very tough to cure such a disease because ये basically क्या, ये genetic disorders ही है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हैं इन अ 2 or 3 लाइन. इतना आपको लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 लाइन में इनको मेंशन करके ख़त्म कर सकते हैं, राइट. सो अगेन कंक्लूजन अगर आप इनका भी लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं कि इनके केस में आपको अलग अलग टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों देखने को मिलते थे. ओके, एंड दिस इज इट विद टुडेज लेक्चर एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस 9.3 वेरी वेल, बिकॉज इसका समझना और इसके जो पहले वाले भी लेक्चर्स थे उसको समझना बहुत ज़रूरी है आने वाले जो 9.4 है उसको समझने के लिए. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.